Hello, good evening, assalamu alaikum, and welcome back to the Pavilion. मैं हूं फख्र आलम, and you're watching A Sports, 10 Sports, and the ARY Zap app. And the Super 12 stage of the ICC Men's T20 World Cup has started, and a very exciting day that we've had. First up, of course, was the New Zealand versus Australia match, where the defending champions were humbled by the Kiwis, an 89 runs defeat. We're going to talk about that a little later in the show, but right now let's talk about the game that has just ended. It was England against Afghanistan, and let's take a look at the match summary first. This is how it went down. Afghanistan were put into bat. England did win the toss and put Afghanistan into bat, and they scored 112 runs in 19.4 overs. Ibrahim there with 32 and Usman with 30, and nothing else substantial from anybody else. Curran and Stokes, amazing. Wood, very good. Wokes, really nice. And in their bowling, Livingston, Hales, Malan, everybody contributing, but Livingston there with quite an innings. And then Nabi and Rashid did really well. Mujib was also good. Fareed there, of course, a very disappointing scorecard for him. Terrible performance there. We'll talk about that just momentarily. But before we do that, let me take a look at the points table quickly. Here is the points table now. This is the Super 12 stage, remember. We have come fourth right now. New Zealand up top there. Look at that net run rate, 4.46 and 2 points. England there at number 2. They've also got 2 points, but the net run rate difference is huge. Will it come into play? We'll find out. Tomorrow, Sri Lanka clash with Ireland. That, I think, is going to be an interesting clash as well. And then, of course, the mother of all games tomorrow, Pakistan versus India. We will be talking about that momentarily as well. With me in the studio, I've got the 4 outstanding legends. These gentlemen represented our country proudly and made us all very proud, gave us so many great memories, so many joyous moments. We all grew up on that, and just humbled by the fact that I am surrounded by them in the studio every day for this entire World Cup. With me, the young dashing Shoaib Malik, Captain Misbah-ul-Haq, one of the most successful test captains in Pakistan's test history. The toe-crushing, batsman terrorizing Waqar Younis. And the king of all kings, the Sultan himself, Wasim Akram. What a great day of cricket. Let's start off with England versus Afghanistan up first. We thought this was going to be an easy win for England. England were put in, they took their sweet time in chasing 112. Yeah, I mean, it was, at the end of the day, it was an easy win for England. A bit too spicy pitch, I would say, for Afghanistan. Not used to of the bounce they normally play. जितनी मर्जी भी आप प्रैक्टिस कर लो इस तरह की पिच पे, और जब खेलते हो तो it is a different ball game. It was very tough game for Afghanistan. England just very clinical. बहुत अच्छा उन्होंने अपना campaign जो World Cup की शुरू की है. Curran getting 5 wickets, and then of course that Wood. I was very impressed with Wood, the way he bowled quickly. And आप देखेंगे कि throughout the World Cup, England अपनी strategies बदलता रहेगा, especially when it comes to bowling. And then, of course, catching was outstanding. I mean, England was, apart from the other sides when you look at when you talk about the best teams in the tournament. Truly. Wasim, yes, the English unit looking good. A win, nonetheless, 2 points on the board. But somehow, as I put that question to Waqar as well, I bring that question to you as well, that they took their time chasing this 100. They didn't go out there and said, oh, we'll just finish this in 10 overs. Yeah, look, it's a Pehla match the World Cup ka, so the idea is to win the game first, and I think run rate eventually might come in, but sometimes you might win games, so many games you're far ahead of any other team. But Afghanistan obviously inexperienced इस level, international level पे, वो आज तक किसी team से match जीते नहीं हैं international level पे. 29 games they played, 28 lost and 1 tied. So that's where they have to improve. और ये 109 पे 5 out थे, ठीक है, और 112 पे सारे out हो गए. So ऐसे मौके पे एक प्लान बन जाता है, उसी वक्त मैसेज आ जाता है, या कुछ अगला बैट्समैन मैसेज लिखे, देखो भी विकेट पे बाउंस आ रहा है, हमें समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है. सो लेट्स गेट टू 125 130, रोक के सिंगल करके, बट ऑब्वियसली दैट वाजंट द केस. एक तो वो मुझे समझ नहीं आती गेयर चेंज क्यों नहीं करती क्रिकेट टीम में आजकल. उस विकेट पे उस बॉलिंग के खिलाफ पता है कि तेज़ गेंदें आ रही, समझ नहीं आ रही. वो पुल के लिए जाते थे, बॉल कीपर के पास होता था, उसका बल्ला तब आता था. इतना पेस का फ़र्क था. सब कॉन्टिनेंट पिचेस की और ऑस्ट्रेलिया की ये जो पर्थ में मैच हुआ था. सो दैट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर देम, हाउ टू असेस द पिच, असेस द ऑपोजिशन, एंड देन
get to certain total where you can actually defend, and catching, like Waqar said, has been exceptional. I mean, एक catch उसने किया है अदील ने, that was, he made it look very very easy. This was the catch. ये रशीद ने बड़ा ज़बरदस्त कैच किया, पीछे भागा है, ऊपर खड़ा था, and then he took it in the end. So yeah, one of the best sides so far of the early days in the World Cup. Look at that catch. Look at that carry and catch. और सैम करन सिर्फ 10 रन दे के 5 विकेटें, 4 ओवर भी नहीं किए. That sums up the whole game and batting of Afghanistan on this pitch against this pace attack. Misbah, was this Perth pitch very different to what we saw earlier in Sydney today? Well, somebody don't know, alarm bells reach. तकरीबन मुश्किल question पूछा. One is the slowest pitch in Australia, the other one is the quickest pitch in Australia. Especially अभी ये जो नया ग्राउंड है यहाँ की, उसका बाउंस भी बड़ा डिफरेंट सा बाउंस है. इवन स्पिनर्स पे भी बॉल उस तरीके से बल्ले पे नहीं आता, क्योंकि हम भी वहाँ खेले थे तो हम भी 105 के 107 पे आउट हो गए थे. इट वाज लाइक दैट. इट वाज डिफ़िकल्ट टू हैंडल, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट की किसी भी टीम के लिए, और अफगानिस्तान जैसी टीम के लिए जिनका प्रॉब्लम ही सबसे बड़ा ये है कि जब तेज़ बॉलर आते हैं 140 प्लस वाले बॉलर, स्पेशली ये लेंथ जो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल आते हैं, और फिर उनकी फास्ट बॉलिंग, वहाँ पे ये मार खाते हैं. अगर थोड़ी सी आपको स्पिन फ्रेंडली पिच मिलेगी तो वहाँ पे वो एक्सपर्ट हैं, क्योंकि सारी क्रिकेट खेलते हैं शारजा में. ऐसी पिच आई थिंक जितना मैच उन्होंने वे बना भी लिया है, ये भी बड़ी बात है कि वो सेकंड लास्ट ओवर तक इसको ले गए हैं. बट स्टिल आई फील वसीम भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है. ऊपर के 6 ओवर आप निकाल गए, उसके बाद टिल द 15th ओवर स्टिल 6 विकेटें आपके हाथ में हैं, और आखिरी 5 ओवर में 6 विकेट्स गिर गए, 23 रन. वहाँ पे अगर ये 15-20 रन का डिफरेंस डाल देते तो मेरे ख्याल में और मुश्किल हो सकती थी इंग्लैंड को. बिल्कुल ऐसी है शोएब. ऑब्वियसली पर्थ उन्होंने कहा बड़ी तेज़ विकेट है, बाउंस भी है, बट एप्लीकेशन बाय द बॉलर इज़ वेरी वेरी नेसेसरी. इट्स नॉट नेसेसरी दैट यूर पेसी एंड द विकेट इज़ क्विक. आप फरीद को देख लें, अच्छी विकेट थी, बाकी सारे अफगानी बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, बट ही वाज टेरेबल ऑन द सेम विकेट. सो हाउ इंपॉर्टेंट इज मेकिंग श्योर दैट यू बॉल राइट इवन इफ द विकेट इज़ वेरी गुड फॉर यू. बाउंसी ट्रैक पे अगर आपकी लेंथ और लाइन थोड़ी सी भी आगे पीछे हो गई तो आपको मार पड़ेगी, जो कि उनके साथ फरीद के साथ हुआ. और मुझे ये लगता है कि जब आप टफ पिच पे खेलते हैं तो बल्ले घुमाने वाले बैट्समैन नहीं चलते. वहाँ आपको अच्छी साउंड टेक्निक वाले जो बैट्समैन हैं उनका काम आ जाता है. तो अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं जो सिडनी में मैच हुआ और जो पर्थ में मैच हुआ, तो जो पर्थ में मैच हुआ ये आसान पिच नहीं था. और यहाँ पे सिर्फ जैसे जरजाई और गुरबाज हैं, गुरबाज थोड़े से ऐसे हैं वो डाउन द ग्राउंड ज़्यादा खेलते हैं, लेकिन बल्ले घुमाने वाले बैट्समैन मुश्किल पिच पे नहीं चलेंगे. और मुझे ये लगता है कि अगर इनको आगे जाना है या बड़ी टीम्स को बीट करना है या ट्रॉफीज़ जीतनी है अफगानिस्तान को, तो इनके जो बैट्समैन हैं उनको कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्म करना पड़ेगा. आज हमने देखा जो 3 स्पिनर्स हैं उनके, नबी और राशिद एंड मुजीब, आज भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की तीनों ने. बिल्कुल वो किसी भी पिच पे अच्छी करेंगे क्योंकि उनके पास वो तगड़े स्पिनर हैं. सिर्फ इनको बैटिंग में थोड़ा सा मुझे लगता है इम्प्रूव करना है. और दूसरा मैं सैम करन की यहाँ ज़रूर बात करूँगा. पेस उनके पास है नहीं, लेकिन इफ़ यू ऑल रिमेंबर मैंने कहा था कि मीडियम पेसर को स्मार्ट बॉलर होना चाहिए. अगर हम उनकी बॉलिंग देखें तो उन्होंने कभी भी प्रेडिक्टेबल होके बॉलिंग नहीं की. यूजुअली मीडियम पेसर्स क्या करते हैं, गुड लेंथ पे बॉल करते हैं. ये खैर स्पिनर दिखा रहे हैं उनके, गलत चल गया था पैर. कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है. तो सैम करन कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं हुए. राइट. इवन दो पिच वाज टफ, लेकिन उन्होंने कभी बाउंसर कराए, कभी उन्होंने स्लो वन कराए, कभी आउटसाइड ऑफ स्टंप कराए. और उनका जो आर्म है जो वो बहुत तेज़ घूमता है, इसीलिए उनके बाउंसर पे आप देखें कि उनको बहुत सारी विकेट्स मिल रही हैं. इवन दो ही डजंट हैव पेस लाइक वुड, लेकिन वो जो उनका क्विक काम है उससे बहुत एडवांटेज हो रहा है. जी आई थिंक सैम करन का एक और भी बहुत बड़ा एडवांटेज है मलिक, कि व्हेन यू आर अमंग वुड, स्ट्रोक, वॉक्स, आप उस तरह का बॉलर जब बॉल करेंगे ना अर्ली ऑन, और वो अगली टीम को मुसीबत डाली हुई, मुश्किल डाली हुई है, तो फिर करन
को किसी को तो अगली टीम ने किसी को तो अटैक करना है, Target so करना है he किसी looked ने। like someone they could have attacked. That is the reason why he picked up wicket. No doubt, I mean, he's a smart bowler. उसने अपनी स्मार्टनेस से ही फिर बॉलिंग की ना, उसको भी नज़र आ रहा था कि ये सब मेरे पीछे आएंगे या स्पिनर के पीछे आएंगे. So he bowled really well because the ऊपर से जो उन्होंने ऊपर से सिनारियो बना दिया था, it was ideal for him to use all his variation and swing, and he's a smart bowler, no doubt, but that edge goes to him. So you're basically saying is that the leading bowlers, Ben Yeah, Stokes, the top Chris bowlers, Woakes, yeah. they had created enough pressure on Afghanistan. They were forced to go after Sam Curran, and They had that's no where choice. they had They no had no choice. choice. They really didn't, and that is a really good. वो ये जरा Woakes और Wood की बात कर लेते हैं वसीम. You know, Wood was really good here, even in Pakistan during the England-Pakistan series. You know, he had the Pakistani batsman a little concerned, little worried, was taking wickets. अब ये अगर पर्थ जैसी विकेट पे हमें कहीं टकर गए तो फिर क्या होगा? Can't answer that, but coming back to एक चीज़ अब इससे ये पता लगा है कि एज अ बॉलर जब आप पिच असेस कर लेते हो, ऑपोजिशन असेस कर लेते हो, इट डजंट मीन कि इस फॉर्मेट में आपने स्लो बॉलिंग करनी है. उसने चारों के ओवर में एक भी स्लो बॉल नहीं की, बिकॉज ही पिच रियलाइज कि ये ऐसी पिच है जिसमें स्लो बॉल करने की मुझे ज़रूरत नहीं है. तो उसकी हर गेंद 140 प्लस थे. आई थिंक दिस इज फर्स्ट टाइम हैपेंड मे बी इन T20 फॉर्मेट के किसी बॉलर ने 24 के 24 गेंद 140 प्लस की है. और वो बाउंस, वो अब देखें ना, ज़ज़ाई इज़ अ वेरी गुड प्लेयर अगेंस्ट शॉट, स्पेशली इन विकेटों पे, सब कॉन्टिनेंट की UAE की पिचेस पे. वहाँ पे वो जब भी गया है मारने वुड को या इवन करन को भी गया है, he was too late. Every time he was too late because आपके रिफ्लेक्सेस उस पेस के अभी तक यूज टू नहीं हुए और उसको टाइम लगता है यूज टू होने में. और कैप्टन की भी स्मार्टनेस है कि उसने जो है अपने जो लेटरल मूवमेंट जिनको मिलती है उनसे नया बॉल कराया. वो इस वजह से बेन स्टोक्स और क्रिस वोक्स ने, और जब वुड को वो लेके आए तो उसने कहा कि प्रोटेक्शन हो, ज़रा कॉर्नर्स जो है बड़ी बाउंड्री. ग्राउंड फील्डिंग एज वेल, कैचिंग वाज फिनोमिनल, आई अंडरस्टैंड, बट ग्राउंड फील्डिंग बिकॉज साइड्स वर टू बिग. उन्होंने दुक्के लिए हैं उससे लियम से, मगर लियम फिर खुद ही अपने आप को उसने एडजस्ट किया है कि मैं थोड़ा आगे आ जाऊँ, अगर ये सेट बैट्समैन है तो मैं थोड़ा पीछे चला जाऊँ. सो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं इस लेवल पे, इस फॉर्मेट में. Misbah, it was difficult to reach the boundaries. That's why we saw a lot of wickets go down in catches. ज़ाहिर है स्क्वेयर बाउंड्रीज बहुत बड़ी हैं और स्पेशली विद दैट सॉर्ट ऑफ पेस एंड बाउंस वो है भी आपके लिए बड़ा मुश्किल है उसको कनेक्ट करना, और आप ऑलरेडी लेट होते हैं उस पर. तो इसी वजह से मेरे ख्याल में बॉलर जितने भी थे, सैम करन की सबसे अच्छी चीज़ है कि वो बहुत एक्यूरेट बाउंसर करते हैं. पेस ना भी हो तो आपकी आर्म्स खुलने का आपको टाइम नहीं मिलता, और बिल्कुल आपके वो सर के सामने होता है तो वो सीधा वो आपके फाइन लेग और स्केल लेग वाले फील्डर के हाथ में जाती है. थोड़ा सा भी बॉल इधर आपको विड्थ मिल जाती है तो देन यू हैव द चांस टू जस्ट हिट इट टुवर्ड्स मिड विकेट या थर्ड मैन की तरफ भी खेल सकते हैं. अच्छा, ये देखें बिल्कुल टारगेट हो, देखें जब हेड हाई एग्जैक्टली हेलमेट का टारगेट किया हुआ जो भी पीछे बॉल किया. अब इस बॉल को जब आप कनेक्ट करेंगे वो लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो पॉकेट है, फाइन लेग और स्क्वायर लेग, सीधा उसके हाथ में जाना. अच्छा, इंटरेस्टिंगली गुरबाज ने शुरू में एक बॉल जो है वो फाइन लेग की तरफ, शॉर्ट बॉल को, अगर आप, आई डोंट नो इफ यू हैव दैट अवेलेबल और नॉट, बट ही गॉट इट समहाउ, ही गॉट द टाइमिंग राइट ऑन इट. ही डिडंट एक्चुअली गो स्क्वायर, ही वेंट फाइन लेग ऑन द शॉर्ट बॉल. उसने अगर आप पीछे भी देखें टूर्नामेंट में, ही हैज़ डेवलप्ड दैट शॉट कि वो बिल्कुल जैसे वो सूर्य कुमार यादव भी खेलता है, वो बिल्कुल वो लाइन से निकल जाता है उस तरफ को और वो पेस को यूज़ करता है. ये जिस तरह मलिक कह रहा था कि ऐसी पिच पे आपको यू नीड टू बेसिकली ये जो पेस यूज़ करने की शॉटें हैं वो आपको खेलनी है. ये तो खैर अगला गेम था उसको उसने खेला है, बट वो नॉर्मली शॉर्ट बॉल को भी ये वाला शॉट खेल रहे हैं अंदर की तरफ और पेस को यूज़ कर रहे हैं. यू डोंट हैव टू फाइट अगेंस्ट द पेस. अब वुड की अगर पेस को आप कोशिश करेंगे मैंने सामने मारना है, इधर को मारना है इस पिच पे, तो वो ये बॉलर ने कैच करना है. बिल्कुल सही. उसको आप सिर्फ प्लेस करें, उस पेस को यूज़ करें, फाइन लेग पे शायद वो छक्का हो जाए. All right, with that, it's time for Fall of Wickets, brought to you by Coca-Cola. And with that, it's time for Player of the Match, brought to you by Zira Plus. A very happy Sam Curran there. Time for Flying Moments, brought to you by Emirates. Time for Best Bowler, brought to you by the McDonald's app. And time for Jubilee Safe Hands, brought to you by Jubilee Insurance. Let's talk about Mark Woods a little bit more here. Misbah, how do you think, suppose कि हम किसी ऐसी सूरत हाल में ऐसी पिच पे टाकरा हो जाता है पाकिस्तान का, how do we handle somebody like Mark Wood?
That's a valid It's question. not only about us, it's about Yeah, for team. anybody, but I mean, obviously, Yeah. for us, Pakistan It is not going to be easy. Obviously जिस तरह की वो फॉर्म में है और हमें यहाँ पे पाकिस्तान में भी उन्होंने ठीक ठाक मुश्किल में डाला है और आई थिंक एक तो पेस है, दूसरा बॉलिंग फॉर्म बड़ी ज़बरदस्त है, कॉन्फिडेंट है। ऑब्वियसली जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो टेक्निकली आपके जितने अच्छे प्लेयर होंगे, स्पेशली अप फ्रंट बाबर का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, एंड देन ऑब्वियसली रिजवान, और अगर शान मसूद खेलते हैं, ये हमें थोड़ा सा एडवांटेज है कि हमारे तीनों प्लेयर ये ऑस्ट्रेलिया में रन कर चुके हैं पहले और उस ब्रिस्बेन में भी रन इन्होंने किए हैं, तो आई थिंक इनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ऊपर से अगर ये इसको अच्छा खेल लेंगे, अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा ऐसी पिच पे स्पेशली। look at that So then- speed. Yeah, look at that speed. Sorry, just bringing this on your screen. Waqar, look at that speed. He's gunning it, Wasim. Yeah, I just mentioned, imagine he was literally unplayable. I think most of the batters in the world, they probably never played on a pitch like this against a bowler like him with that kind of pace and length. And of course, length के साथ उसकी line, उसने ये बुरा ball भी नहीं किया होता है ना, fast bowler कई थोड़े wavered होते हैं. He wasn't even wavered. He was just there either outside off stump or towards your rib cage. On this pitch, like मैंने उधर explain किया है, उस दिन किसी ने देखा नहीं देखा कि पर्थ की pitch पे ball को middle करना is literally, look at the percentage of 49% was short and then 42% was back of a length. 9% full, 1 Yorker, nothing in the slot, 0% in the slot. Nothing down the leg side either. Yeah, but that's Everything the- is just maintaining that line, that channel. Yeah, that shows कि इस pitch पे आपने length क्या मार एक दी बॉल उन्होंने किया था, प्रॉब्ली वो भी यॉर्कर करने की कोशिश Yeah. की थी, बस दैट्स इट, बिल्कुल। दैट वाज द 4 एंड देन ही जस्ट All right, थ्रू with द that, लाइन बड़ा जिगरा चाहिए बैट्समैन को थ्रू द लाइन इसको खेलने के लिए। through the line मतलब थ्रू द लाइन मतलब उसकी पेस यूज करने के लिए आपको लाइन में आना पड़ेगा बॉल की, हट के नहीं में लगेगी बॉल। हट के नहीं लगेगी अनलेस वो आपको अगर थ्रू द लाइन भी नहीं आपको रन्स मिल रहे। ऑब्वियसली आप T20 खेल रहे हैं तो आपको थोड़ी सी टेक्निक ये करनी पड़ेगी या आपको थोड़ा सा हट के, क्योंकि बाउंस है Sure. बीच में जाके इतने तेज बॉलर को ऐसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बाउंस हो वो मुश्किल होता है शॉट खेलना। Right, तो right. आप थोड़ा रूम दे सकते हैं ताकि वो अपनी लेंथ चेंज करे। अगर आप एक जगह खड़े रह के उसको थ्रू द लाइन आपको शॉट्स नहीं मिल रहे तो वो आपको तंग करेगा। आई थिंक वो आज क्योंकि सबसे ज़्यादा वो मुश्किल इसलिए था कि उसका बॉल पड़ के थोड़ा सा ऑफ द विकेट भी हिल रहा था। पेस मैनेज हो जाती है। आई थिंक अगर पेसर हो, बाउंस भी हो ना तो मैनेज हो जाती है, बट अगर पड़ के बाउंस भी हो रहा है और फिर साइडवेज भी जा रहा है तो देन अल्लाह हाफिज़ है। फिर वो आज आपने देखा उन्होंने ट्राई की है अफगानी बैट्समैनों ने, दे जस्ट ट्राई टू प्ले दोस, इवन दे ट्राइड दिस, वाज जस्ट टू मच बाउंस फॉर देम। लेकिन वो आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना Yeah. विकी भाई, इसलिए आपको एज अ बैट्समैन आपको हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि डिफरेंट कंडीशंस मिलेगी। हम लोगों ने जो होबार्ट में मैचेस देखे वो डिफरेंट कंडीशंस थी, फिर हम लोगों ने सिडनी में देखे वहाँ पे डिफरेंट कंडीशन है, हम लोगों ने ये पर्थ में देखा यहाँ पे डिफरेंट है। तो बैट्समैन को हर प्रैक्टिस करके स्पेशली व्हेन यू गोइंग इन द बिग इवेंट तो आपको रेडी रहना है हर चीज़ के लिए। ऐसे ही है। उमर गुल है अफगानिस्तान के साथ कोच, आप दोनों कोच रह चुके हैं। व्हाट डू यू थिंक इज उमर गुल्स कॉन्वर्सेशन विद द टीम राइट नाउ, you know, after this game? What do you think is going to be the discussion all about? Look, Afghanistan always rely on their spinners. You know, सबकॉन्टिनेंट में उनका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, बॉलर्स का स्पेशली स्पिनर्स का। तो look, what can one do? अगर रन्स बोर्ड पे नहीं लगेंगे तो it is very hard for a bowling coach also to tell them what needs to be done. I don't think they did badly, but because there were not enough runs on the board and playing against England, you know, you're asking for too much. And I guess in the middle of the tournament, you're not going to sort of blast them or tell them you're doing wrong, this right, wrong. You're going to encourage them and ask them to keep going and try to get the best of you. Anyway, it's early days. It is early days. This is the first game. What does Jonathan Trott bring to the Afghanistan dressing room, Misbah? आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट का जब इतना आपका एक्सपीरियंस होता है और स्पेशली जो इंग्लैंड का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे जिस तरीके से वो ले के चलते हैं क्रिकेट को, प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस भी देते हैं, उनको बैक करते हैं, फिर उनको उस तरीके से ले के चलते हैं आगे। थोड़ा सा जब आप ऐसी क्रिकेट में जाते हैं तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें ज़्यादा आपका रोल एज अ मेंटोर भी होता है ऐसी टीमों के साथ। सेम आई थिंक विल बी द रोल ऑफ उमर गुल ऑल्सो।
क्योंकि जिस टीम की टॉप 6 टीमों के ख़िलाफ़ कोई आप मैच ना जीते हो तो वो जो सेल्फ बिलीव होती है वो आपके पास नहीं होती। कई दफ़ा आपके पास वो मौके आते भी हैं तो आप वो मैच खुद ही जो है वो कहीं ना कहीं दे देते हैं। उसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास अफगानिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान, लास्ट ओवर लेंथ बॉल खेला नहीं जा रहा था और जो नसीम शाह को 2 फुल टॉसें की हैं। सो दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस, वो जो क्रंच मोमेंट्स हैं उसमें कैसे अपने नर्व्स को आपने होल्ड करना है और उसको फिनिश कैसे करना है, ये मेरे ख़्याल में इस किस्म के जो कोचेज़ आते हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट इस लेवल पे खेली होती है वो उनका इनपुट उन सिचुएशंस में ज़्यादा होता है। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान स्टिल नीड्स टू work very hard, especially उनकी जो बैटिंग है against the fast bowlers. Yeah, they need to invest into fast bowlers as well. The spinners are the best in the world. We have discussed them. Rashid, Nabi, Mujib, फिर वो आपका नूर आ रहा है इनका, फिर कैस है. You know, they have very good spinners back up. I remember fast bowling में ये struggle करते हैं. उन्होंने, I think early on in the year they also hired Pakistani great Younis Khan for the batting a bit as well. So yeah. वो इन्वेस्ट तो कर रहे हैं मगर फास्ट बॉलर्स पे इनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा आगे जाके। आज भी शॉर्ट टर्म के लिए सबसे बड़ा कंसर्न उनका ये है जिस पे उनको अभी के लिए फोकस करना चाहिए, हाउ टू गेट टू 140-150, क्योंकि उनका अटैक ऐसा है कि उसको वो डिफेंड कर सकते हैं रिगार्डलेस किसी भी कंडीशंस में वो खेल रहे हैं। तो अभी के लिए उनका बहुत सिंपल ये होना चाहिए कि यार हम कैसे 150 रन बना सकते हैं, 140 रन बना सकते हैं एटलीस्ट। वो जो उनके पास अच्छे बॉलर्स हैं, स्पेशली जो उनके स्पिनर्स हैं, वो फिर आ जाएंगे गेम में, क्योंकि 120-130 पे वो राशिद को आप विकेट नहीं दें तो मेरा ख्याल है कोई भी टीम चेस कर जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ 2 बैट्समैन इब्राहिम ज़ादरान, उस्मान गनी, ये थोड़ा टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं ये, और इनका रोल भी यही है इस टीम में। आज भी वो अच्छा खेल रहा था बट इवेंचुअली वो जो सबसे बड़ा रीज़न है कि नीचे आके जो मोहम्मद नबी हैं या नजीबुल्ला ज़ादरान जिन पे वो बैंक करते हैं आखिरी 5-6 ओवर्स में, क्योंकि पिच ऐसी थी, सामने बॉलिंग ऐसी थी, वो वहाँ पे वो मोमेंटम नहीं दे सके, वो रन्स नहीं कर सके आखिरी 5 ओवर्स में। प्रॉबली वो 130-40 हो जाता बट वो डिफरेंट पिच थी, वहाँ पे उनसे वो नई कंट्रीब्यूशन हुई। That should be the strategy for them, and with that it's time for game-changing moments brought to you by Pepsi. And it's time for Super Moments, brought to you by Jazz. Time for Refreshing Moments, brought to you by Tapal Danedar. Fielding was really good throughout the day today. Let's take a look at the fielding effort of the day, brought to you by Pampers. Time for the way forward, brought to you by Bank Al-Falah. So, Carl, let me bring this to you. What is the way forward for the Afghanistan fast bowlers? When you look at their figures, some of at least one or two bowlers were okay, but Fareed was, absolutely a burden on the bowling card, and so was the other gentleman as well. What is the way forward for them? Look, it was a struggle for them. I mean, not only कि बैटिंग को आपको इशू होता है, ऐसे मैचेस में बॉलिंग को भी इश्यूज होते हैं। अगर आप यूज टू ना वो बाउंस के, हम लोग हमेशा, वसीम भाई ने पहले भी काफ़ी दफ़ा ये बात की है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो, इट्स नॉट अ प्लेस वे ईजी प्लेस टू बॉल देयर ऑल्सो. It takes a long time to adjust the lengths and the right lines on those pitches. So I think way forward is very simple. Just every game you play, try to look at the other bowlers, what they have done, and learn from them. And they're pretty good bowlers. They're not that bad. They just need to just get into the tournament and try to support their spinners. So the most important bit is कि आप जब bowling करने जाओ as a fast bowler, just look to ball dot deliveries. अगर आप dot deliveries और आप pressure create कर दोगे तो फिर जो नीचे वाले bowler हैं, मुजीबुर रहमान या राशिद हो गया या even नबी हो गया, I mean they are the bowlers who will win you games. So the important bit is कि जो आपके जो faster bowler हैं, just give that control what the team is looking for. Right, and that was the way forward, brought to you by Bank Al-Falah. Right, Misbah, you wanted to add something, please? एक्चुअली मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि अभी भी इनके जो दोनों लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में थोड़ा सा हाई आर्म और थोड़ा हाइट वाला बॉलर जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट करता है। वाला ऑर्डर तो नहीं कर सकते। आई थिंक नवीन था इनके पास, बट दे हैव द चॉइस। अगर आप लेके आना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, अगर आप खेलना चाह रहे हैं तो आपके पास राउंड आर्म उन कंडीशंस के बॉलर हैं तो वो चाहे जैसी मर्ज़ी बॉलिंग करें, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी उन पिचेस पे।
और बिफोर इवन कमिंग है उनको पता था कि हमारे पर्थ पे मैचेस हैं, तो आई थिंक ये भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा उनका डिफरेंस है। आपको उन पर बिलीव करना पड़ेगा। अब है क्या कि मेनली स्पिनर्स ही बॉलिंग करते हैं और कहीं पे इन फास्ट बॉलर्स को चांस भी नहीं मिलता। 4 डे क्रिकेट या लंबी क्रिकेट वो नहीं खेलते। अगर इनके जो फास्ट बॉलर हैं भी तो वो ज़्यादातर एंड के ओवरों वाली बॉलिंग करते हैं, एक फारूकी के अलावा। वो लेंथ बॉल नहीं हिट कर सकते जो नॉर्मली ऐसी कंडीशंस में मुश्किल होती है, और कंसिस्टेंटली अगर वो नहीं करेंगे तो बाहर की कंडीशंस में आप कर तो सकते हैं, बट दे जस्ट नीड बिट मोर टाइम आई थिंक टू गेट इनटू इट, यू नो। इट्स नॉट इजी, स्पेशली यू नो आप जब जिन पिचों पे इधर खेल के जाओ और सडनली आपको कहा जाए कि ऐसी पिचों पे गेट द लाइंस एंड लेंथ्स राइट, इट्स नॉट इजी। T20 क्रिकेट प्रॉब्लम क्या होती है जब नए हम भी जाते थे ऑस्ट्रेलिया, फर्स्ट टाइम गए, स्पेशली ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज उन पिचेस पे बाउंस होता है, तो आप पहले तो एक्साइटेड हो जाते हो कि बाउंस है, कीपर तक कैरी करेगा, सो यू गेट that's what Australia wants you to do, because they are good playing against short pitch bowling, कट भी अच्छी मारते हैं, पुल भी अच्छी मारते हैं। आपको 1-2 मैचों में 1-2 ओवरों में फड़कास पड़ती है एज अ बॉलर, यंग बॉलर, फिर आप क्या करते हो, अब थोड़ा फिर आगे करते हो वो ऑन दी आप खेल देते हैं। सो वो लेंथ आपने सीखनी है कि बैक ऑफ अ लेंथ में ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट है, सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पे डिफरेंट है, इंग्लैंड पे डिफरेंट है, और वो आती है इवेंचुअली आपको क्रिकेट लंबी खेलने से। ऑस्ट्रेलियंस क्या करते हैं, एक और उनकी जो टैक्टिक्स कह लो या स्ट्रैटेजी कह लो, वो ये होती है कि जो भी टीम वहाँ टूर करने आती है उसको पहला मैच पर्थ में देते हैं। पर्थ या ब्रिस्बेन? पर्थ पे मेनली 3 डे मैच जो आपका वार्म अप मैच होता है ना, तो वो आपको वहीं से डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं। 1.5 दिन में खत्म होता है वो आपको। अगर हम 2 दफ़ा हुआ हमारे साथ, हम लोग 70, 80 पे आउट हो गए, तो वो आपको फिर उससे निकला ही नहीं जाता पूरे टूर में। जब तक आप निकलते हैं, जब तक आप आखिरी टेस्ट मैच तक पहुँचते हैं, तब तक टूर खत्म हो गया। नहीं, आप पहले में फाइट करते हो, वो जीत जाते हैं, दूसरे में थोड़ी सी फाइट कम होती, तीसरा सवा दिन ही खत्म हो जाता है। टेस्ट मैच ऐसे ही है। वो एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपोज पेसर्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो रन्स नहीं बनाते। अगर वो डिसेंट रन बनाएंगे तो ये आई एम श्योर ये जो बॉलर्स हैं ये अच्छा करेंगे, क्योंकि वो डिसेंट रन्स नहीं है। और दूसरा जो उनके स्पिनर्स हैं 3, उनको सब बड़े चुकन्ने हो के खेलते हैं, तो वो इन पे अटैक होता है। तो वो जो वसीम भाई ने कहा ये बात कही कि तो ऑर्डर कर दे, तो कहाँ से ऑर्डर कहाँ आएंगे? ऑनलाइन रन्स बनाए, थोड़े से ज़्यादा रन ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। था वो 6 फुट कुछ था और हमेशा मुश्किल। 2015 में अब भी वैसे होंगे अफगानिस्तान में, होने चाहिए, दे स्ट्रांग है। अंडर 19 मैंने एक्चुअली वर्ल्ड कप अंडर 19 में देखा, देयर आर बॉलर्स, दे शुड ग्रूम देम नाउ, इज अ वेरी स्ट्रांग, मुझे अब नाम नहीं पता, he bowls 142, 143, quick bowler. All right. Well, you know, interesting that you said कि वो ऑस्ट्रेलिया हमेशा पहले जो है पर्थ में मैच करा देते हैं, but because this is an ICC tournament, they got their first game in Sydney, where they did not do that well today against New Zealand. That was a shocker. We are going to talk about that game, the first game of the Super 12 stages. It was Australia versus New Zealand, and the Kiwis completely bulldozed the Australians, winning the game by 89 runs. अब इस मैच के बारे में बात करेंगे, मगर इस वक्फे के बाद कीप वाचिंग द पवेलियन on A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. The ICC Men's T20 World coverage continues. See you on the other side. Welcome back from the break. मैं हूं फखर आलम और आप देख रहे हैं The Pavilion on A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. And thank you for joining in. It's the ICC Men's T20 World Cup, the Super 12 stages. Now, we were talking about the England versus Afghanistan game, but earlier today we had another cracker of a game. Well, rather a one-sided affair, but it was quite a cracker for the Aussies because nobody expected a result like this. Defeated by 89 runs. Here's the scorecard on your screens. Take a look. New Zealand batting first. What a great start they had, and what an innings by Conway. He went back into the pavilion undefeated. They're scoring that 92 runs and a contribution there by Misbah at 42. 2 for 41, Hazelwood getting the most wickets but scoring. You look at that column of the runs. He gave away 41 runs. Same for Zampa, 39. And then on Maxwell, Cummins tried to put some effort into that batting, but that batting just couldn't gel together for Australia. The New Zealand bowlers, 2 handful for them. And with that, New Zealand won the game by 89 runs. Let's start off, Wasim, by that Conway innings, that Conway start that we saw this morning. Conway played amazing innings, 92 of 58, but the guy who started this slaughter
Yes. was Finn Allen. Yes, Allen, absolutely. I mean, second ball he faced of one of the best bowlers in world cricket, Mitchell Stark, went over. We're talking about Conway, yes. I mean, in the beginning he was the anchor, and then Finn Allen played shots, and then he became the aggressor. And then रुका नहीं वो, मार ही गया. देखो एंड भी उसने किया है 42 एंड भी उसने किया 92 किया 58 गेम पे स्ट्राइक रेट ऑफ ऑलमोस्ट 160. वसीम भाई उसको वैसे भी गुस्सा वो फाइनल वाला भी है क्योंकि वहाँ पे उसने खुद ही अपना हाथ तोड़ लिया था और फाइनल नहीं खेला था लास्ट टाइम. एंड ही वाज इन सुप्रीम फॉर्म एट दैट टाइम. न्यूजीलैंड को बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ था फाइनल में. जी हाँ. तो आई थिंक वो भी आज गुस्सा था और वो किसी बॉलर को उसने कोई लिफ्ट नहीं कराई. But coming back to this special talent, I've seen him first time. I've heard his name, Finn Allen. Yes. But man, the second ball from one of the top I know bowlers, his innings was spectacular as well. ये अभी आपकी स्क्रीन पे आएगी. That too, again, in Australian bowler जो उसने उसको चौका मारा है, फिर चौका मारा है, फिर उसने इधर किया, फिर दिया है, वो रुका ही नहीं. 42 of 16 ball, the game was changed there. उसके बाद न्यूजीलैंड रुका नहीं और ऑस्ट्रेलिया दोबारा ऊपर ही नहीं आया. You know, it was unbelievable performance by New Zealand, and I thought Australia will put up a little fight, but they were just gone. And look, that was the second ball, if I remember. Yes, second ball, and then there was the fifth ball. वो तो रुके ही नहीं भाई. 3 sixes, 5 fours, strike rate of 262. Yeah, it's got the highest strike rate in world cricket apparently, 173, and he came through proper ranks. You know, under 19 2016 का World Cup भी ये खेला हुआ है, and he's a big unit. He's a tall guy. आपने उसको देखा होगा, अभी आप थे न्यूजीलैंड में विकी. मैंने आप लोगों को सुबह कहा था, हाँ, मुझे आप समझ लोगों ने नहीं गौर नहीं किया उस पर. हाँ. मुझे मेरी बात को इतना सीरियसली नहीं लिया क्योंकि इनके केस में समझ आता है, लेकिन आप तो सुबह वाले हैं. नहीं, मैं आई कुडंट गैदर कि ऐसा स्पेशल प्लेयर है. मैंने कहा था कि जब मैं भी न्यूजीलैंड गया था तो मार्टिन गप्टिल, मैं सोच रहा था कि ही शुड प्ले. बट जब देखा is a different player, very very aggressive. देखिए, उन्होंने अपने मेन प्लेयर मार्टिन गप्टिल, जिसके 3,500-4,000 T20 में रन उसकी कितना ज़बरदस्त खेलता है, उन्होंने फ्यूचर देखा, इसको खिलाया. और किसी न्यूजीलैंड के रिपोर्टर ने ट्वीट नहीं की कि ये जी इस शहर का है, कि ये जी इस शहर का है, ये सीनियर है, ये ड्रॉप हो गया है. चुप करके बैठे हुए ने सारे. ऐसे होता तो यहाँ होता तो इस वक्त आवे का आवा हिल चुका होता सबका. I know what you mean by that. But He's an amazing talent, a very free-flowing batsman, fearless batsman. Although मेरी loyalties ऑस्ट्रेलिया के साथ ज़रूर हैं, लेकिन in a way अच्छा हुआ है, थोड़ा सा उनको भी समझ आएगी. वेकअप कॉल हुआ है कि there are other teams also, because ओवरऑल अगर देखा जाए लास्ट टाइम वर्ल्ड चैंपियंस एंड नाउ सडनली इस तरह का झटका लगना, और इससे इनका जो रन रेट है, आपको देखेंगे उनका जो न्यूजीलैंड का रन रेट तो वेकअप कॉल से ज़्यादा, वेकअप से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया. ज़्यादा उन्होंने बेसिकली छुरा मार के उठाया उनको. I was hearing that Australia is in deep trouble now. Yes. क्योंकि वो क्वालिफिकेशन उनकी नेट रन रेट की लाइन से तो वो बहुत almost impossible है कि उससे बाहर है. Because of that 89-run defeat, if you look at the points table one more time, New Zealand with this match right on top, and Australia right at the bottom. They're minus 4.45. That's a lot of difference. That's a huge minus 4.45. It's gonna take a psychologically. जापानीज तोते की तरफ आना है या बंदा खुद आ जाए. बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रेडिक्शन की थी. किया था, उससे भी कुछ आपने बिल्कुल बड़ी जबरदस्त प्रेडिक्शन की थी शोएब. You've been very accurate by the way throughout this. शुरू में जापानीज तोता जो फड़के मार रहा है, या एंड तक जाके तसल्ली हो जानी है. नहीं, वैसे जो भी है यही गल्ला करना, कोई अच्छी ना करना. नहीं, वैसे जो भी है, आई डोंट नो कि शोएब का तुक्के लग रहे हैं, लेकिन अभी तक जितनी भी प्रेडिक्शन की हैं, शोएब की बड़ी अच्छी रही है प्रेडिक्शन. वाकई तो तोता है तेरे को. आई थिंक नहीं, मेरा रेशियो 50-50 है. नहीं, आपने वसीम भाई सुबह पता क्या कहा था? 50-50. मैंने एक मेरी प्रेडिक्शन गलत. आपने कहा था रॉकेट साइंस नहीं है ऑस्ट्रेलिया. लेकिन मेरे ख्याल में नहीं, इनका मतलब ये था रॉकेट साइंस नहीं है, मैं ऑस्ट्रेलिया को ही सपोर्ट करूंगा. घर भी तो बात करनी होती है, करना भी चाहिए, वरना एक और मैच देख के या एक और स्पोर्ट्स देखनी पड़ेगी. पाकिस्तानी आ जाके घर पे क्यों चले जाते हैं?
क्योंकि घर का बड़ा रोल होता है हर Not जगह। really. अच्छा। We are doing a show here. Our wives have no idea what we are doing. That's what you think. I think ये I important don't है. think so. I have a kissa to tell that, to support that right now that the wives have no idea. I'm not telling you anything anymore. नहीं, लेकिन मैं बता नहीं रहा हूँ। लेकिन फखर ये ज़रूर पूछना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आखिर ज़ाहिर है शोएब ने पिक किया है न्यूजीलैंड को, तो कोई ना कोई उसके पीछे रीज़न होगी. व्हाट रीज़न? और रीज़न ये थी कि हम 3 उल्टा कह रहे थे ना, तो ये नो आई डोंट थिंक सो. कोई ना कोई लॉजिक होगी उसके पीछे. लॉजिक था. Each story की वजह से पॉजिटिव या ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, मैं तो नहीं, नेगेटिव. genuinely. आपने Okay, कहा so, ना okay, कि- for a second, let's get serious on this. Why did you predict New Zealand? बिकॉज आई कुड सी कि न्यूजीलैंड की जो टीम है इट्स वेल बैलेंस्ड एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलियन टीम, एंड वो स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि वो एक ही टाइप के सारे जो है ना बैट्समैन खिला रहे हैं. और मुझे लगता है कि कभी भी रन ऐसे नहीं बनेंगे कि आप सिर्फ जो है ना छक्के और चौके से रन बनाएं, नहीं बनेंगे. आपको बनाए तो उन्होंने छक्कों चौकों से ही यार. मलिक कम ऑन. न्यूजीलैंड ने. और न्यूजीलैंड मैंने नहीं, सुबह छक्के चौके याद से है बनाए फखर आपको भी याद होगा, मेरे गेस्ट को भी, कि मैंने सुबह कहा था सदी टीम जो सदी है उनका टीम सदी सबसे सऊदी। बेस्ट बॉलर है, तो मुझे कहा गया था 1-2 बाजी आती नहीं पाए नो रह गया ਉਹਦੀ पेस नहीं 2.1 मेरे को overs तो 3 for 6 सीरियस he got. मेरा सीरियस आंसर कितने किया है? गो. नो प्लीज कैरी. लेकिन ये जो कहने का मकसद है मेरे ख्याल में शोएब का कि कॉनवे इज़ अ प्रॉपर प्लेयर. आई मीन ठीक है वो एग्रेसिव खेला और उसने, बट वो टेस्ट में भी उसी तरह परफॉर्म कर रहा है. वनडे क्रिकेट में जब से वो आया है और उसकी जितनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस हैं, आई थिंक दैट वाज द डिफरेंस. बाकी फिन Australia, एलन ने भी ऑब्वियसली उसकी भी जो परफॉर्मेंस थी वो ऑस्ट्रेलिया और आउटस्टैंडिंग. मिसबाह ऑस्ट्रेलिया को देखना पड़ेगा कि T20 फॉर्मेट में आपका 5वां बॉलर बिट्स एंड बॉब नहीं हो सकता. दैट्स द He रीजन. has to be a regular 5th bowler and then 6th bowler can be, एक आधा ओवर के लिए आ सकता है. अब इनके पास मैक्सवेल है और स्टोइनिस है. Although Stoinis bowl okay today maybe, but there was no pressure. I mean he bowled 4 overs 38, but बड़े मैचों में जब आपका मेन बॉलर नहीं होगा 5वां, आप पे ये प्रेशर पड़ेगा ही पड़ेगा एज अ टीम. फिन एलन को मैं क्रेडिट दूंगा, वो इसलिए दूंगा क्योंकि उसने आते ही बिछाड़ दिया था जी, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स बिल्कुल, साथ, को. बिल्कुल. और अगर हम देखें तो जब तक वो खेला उसने 16 बॉल्स में 42 रन्स किए हैं, और जब वो खेला है तो 4 बॉलर्स वर यूज्ड इन फ्रंट ऑफ जी हाँ, हिम, बिल्कुल, they और wanted उसने चारों को फेंटा लगा दिया था. सिर्फ एडम जैम्पा थे जो उसके सामने नहीं आए. तो इसका मतलब है कि उसने आसान कर दिया. उसने जो कॉनवॉय ने 92 रन्स किए, बहुत अच्छी इनिंग्स थी, लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा ये 42 रन्स को ओवर 92 रन्स, क्योंकि उसने सब बॉलर्स को बैक फुट पे कर दिया था. और जो ड्रेसिंग रूम में जो बाकी बैट्समैन ने आना था उनके लिए उसने इजी एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था कि अगर वो गिरते गिराते भी तो 170 प्लस करते. और आई थिंक जो छोटी सी कैमियो इनिंग खेली है नीशम ने 26 ऑन 13 डिलीवरीज, और उसने जो एक लास्ट बॉल पे जो छक्का मारा है ना उसको हेजलवुड को, दैट वाज अ शॉट ऑफ द गेम. बड़ी शॉटें लगी है, 200 किया. हाँ, उसने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा यॉर्कर किया, उसने सिर्फ ये किया और मिडॉन के ऊपर से वो छक्का हुआ. Yeah, that He's a was very strong boy. Very nice wristy shot there. But people talk about, so Neesham's innings, of course, also very good. Just look at that flow of the bat. आई होप वो सिक्सर दिखाएं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला. ये वाला. That's just और इससे amazing. पहले बड़े अच्छे यॉर्कर कर रहा था ये. जी हाँ. Last over, low full tosses and all, but this was just little offline. And ये went, एग्जैक्टली उस तरह का छक्का है जिस तरह आपने मुझे कहा था ना फॉलो करी. इट्स लाइक दैट. कीनिया में हाँ, ये वही वाला है. brings back memories. So we talk about players who कहते हैं कि Finn, he's an explosive batsman. I don't think Finn Allen is an explosive batsman. I think he is an atomic batsman. He's a nuclear option, and you press that button and good luck to the bowling attack. फ्लैट पिचेस पे he will damage any bowler. But what about spinners? I haven't seen him against spinner. You must have seen him अभी Australia. न्यूजीलैंड पे स्पिनर को फिर भी काबू कर लेते हो आप. नवाज ने पहला ओवर किया था 20 अच्छा. का 20 एक मैच में. 20? हाँ जी. So I mean that's his job. He's got a very clean swing of the bat, very clean swing of the bat. और yes, आउट भी हुआ एक आधे मैच में, तंग हुआ क्योंकि पिचें वहाँ पे थोड़ी मुश्किल सी, थोड़ी सी ट्रू पेस थी. मैंने कहा ना जब ट्रू पिच आएगी he'll be the most destructive batsman in their side. और इस तरह का स्टार्ट अगर वो दे देगा जिस मैच में भी,
So you will win more games than you lose. Right. Let's talk about Kane Williamson now. He had a very somewhat a muted innings today when he came in. Just Probably it was required because one end से score हो रहा था. There's no point going on losing unnecessary wicket, and with that 23 गेंदों पे किया, देखें 200 हुआ है, उससे उसकी फॉर्म भी वापस आ जाएगी. उससे टाइम थोड़ा क्रीज पे स्पेंड किया है और उसकी रिक्वायरमेंट इस वक्त ये थी बिकॉज अदर एंड पे कॉनवे हिटिंग कर रहा था ना दबा के. अच्छा, एक पार्टनरशिप अच्छी हुई उनके बीच. हाँ, पार्टनर वो ये सही कहने में 53 बॉल्स पे 69 रन्स की पार्टनरशिप हुई बिटवीन केन विलियमसन एंड कॉनवे. Yeah. So it was a runner ball effort there by Kane Williamson. I think I agree with Wasim that he was probably trying to get some time inside the ground. दूसरे एंड से हिटिंग हो रही थी और स्कोर उनका ठीक जा रहा था. वसीम भाई, इस तरह की इनिंग्स जो है ना उस मैच में तो चल जाएगी जब इस तरह का स्टार्ट मिलेगा. लेकिन अगर इस तरह का स्टार्ट कॉनवे और उसने ना दिया, फिन ने ना दिया, फिर आप अगर इस तरह खेलेंगे तो देन यू विल बी बिहाइंड. No, he won't. He probably changed his game then according to the लेकिन अभी situation. रिसेंटली जो इंग्लैंड वहाँ पे मैंने देखा है, he struggled. अच्छा, he did. Even ऊपर से स्टार्ट जो ही नहीं मिला, he went in and he took way too long. गेम को लंबा ले गया. लंबा क्या, आप हारे हैं वो मैच. It's an interesting stat that I'd like to share with all four of you. Australia played 22 dot balls in their power play. New Zealand played 28 dot balls in their power play. बाउंड्रीज पे तो देखें, बाउंड्रीज ऑफ द क्वेश्चन. दोनों टीमें वैसे बेसिकली बिलीव करती हैं कि जी पहले 6 ओवरों में वी नॉट गोना रोटेट द स्ट्राइक, वी गोना लुक फॉर अ बिग. अगर आप बड़े ओवर भी देखेंगे ना तो उसमें 3 डॉट बॉल होंगे और 2 छक्के और 1 चौका होगा. इस तरह दैट्स हाउ दे ऑपरेट इन द टॉप 6. एंड if they play well, that's a match winning sort of start. At the end of the day, difference आप देखें कि उन्होंने 65 रन्स किए पहले 6 ओवर्स में, न्यूजीलैंड ने the loss of 1 wicket, जबकि ऑस्ट्रेलिया lost 3 wickets and they scored only 37 The game was over then. Game was over then. All right, with that, let's take a look at the fall of wickets brought to you by Coca-Cola. This match का player of the match brought to you by Zira Plus. And time for flying moments brought to you by Emirates Airline. Time for best bowler brought to you by the McDonald's app. And time for Jubilee Safe Hands brought to you by Jubilee Insurance. Glenn Phillips there, what a remarkable catch. With that, it is time for game-changing moments brought to you by Pepsi. Super moments of the day brought to you by Jazz. Refreshing moments of the day brought to you by Tapal Danedar. Fielding effort of the day brought to you by Pampers. So once the New Zealand batsmen put up that 200 runs on the board, it was up to the New Zealand bowlers to defend it. Of course, when you have 200 on the board, that puts a lot of pressure on the side that's going to be chasing, and that gives the bowlers a lot of leverage. But the New Zealand bowlers were there with their A game. Wasim, really well done by the New Zealand bowlers. They seem to have had a strategy for this wicket. उसके स्ट्रेटजी के अलावा ऑब्वियसली 200 रन्स आपके बोर्ड पे लगे हों ऐसी पिच पे, बिग गेम अगेंस्ट द होस्ट, सो प्रेशर इज टोटली डिफरेंट, दे वर मोर रिलैक्स. बट आई थिंक वन थिंग वी सॉ ऑस्ट्रेलियन बैटिंग में कि वार्नर पे बड़ा डिपेंड करते हैं. अगर वार्नर आउट हो गया आज तो उनको समझ नहीं आई करना क्या, बिकॉज कोई भी बैट्समैन जो आप उसके बाद ले लें, कप्तान फिंच है, मिच मार्श, मैक्सवेल, स्टोइनिस, टिम डेविड, वेड, दे आर हिटर्स. They can't take the game deep, and I think that's where they probably missed Smithy today as well. Smith का ये होता है कि विकेटें ऊपर से गिर भी जाती हैं तो वो गेम को चलाता रहता है एंड तक ले जाता है. जो आपको हिटर होते हैं फिर आपके इर्द गिर्द चल सकते हैं. आई थिंक दैट वाज आल्सो अ बिग फैक्टर टुडे कि वार्नर जल्दी आउट हो गया. Right. Tim Sadi ने वकार एक चीज़ वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही थी. He was bowling a lot of slow ones. In fact, Warner को भी जहाँ पे वो किया, Warner was through the shot and then it kind of hit him and then went into the wickets and then he kept just bowling slow ones very regularly. Yeah, वो इसलिए कि उनको मालूम है कि इनके जितने भी बैट्समैन हैं, they all big hitters. उसने शुरू में ट्राई की 1-2 सीम अप करने की, आउट स्विंग करता रहा, लेकिन मेनली यस यू राइट कि उसने कटर्स यूज़ किए क्योंकि मालूम था उसको कि दे गोना कम आउट लुकिंग फॉर बिग शॉट्स एंड इट्स गोना बी हार्ड देन, क्योंकि आपको रन्स जब इतने चाहिए होंगे तो देन यू if you can see his pitch map, जो भी स्पेल हमने छोटा सा देखा है इसका, वो सारी जो उसकी बॉलिंग थी वो बैक ऑफ अ लेंथ और विकेटों को लग रही थी. little bit fuller. यहाँ पे उसने वेरी किया थोड़ी. उनको कराया जो अंदर आते बॉल पे फंसते हैं, उनको उसने वो बॉल कराया. बाकी उसने अपना जो उसका मेन आउट स्विंगर है उसको उस पे रिलाई किया.
And then the captain Kane Williamson trusting Santner, because एक थोड़ी सी जब partnership लगनी शुरू हुई और Finch जो थे वो बड़े खतरनाक लगना शुरू हो गए थे. No, he brought in Santner and Santner was expensive. The first 4-5 balls of Finch खतरनाक कब लगा है? 13 किया उसने. नहीं, लेकिन वो एक दो शॉटें मारी हैं उसने खुल के जब शुरू में. तो एक 6 उसने मारा है फास्ट बॉलर को निकल के. परफेक्ट एग्जांपल ऑफ यूजिंग मैचअप्स. पीछे वो बहुत ज़्यादा आउट हुए हैं, मिच मार्श और एरन फिंच. Sorry, Mitch Marsh. You're right. It was Mitch Marsh that he's talking about as well. लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर के अगेंस्ट तो मेरे ख्याल में वो बहुत ज़्यादा वर्क करके आते हैं न्यूजीलैंडर, और उन्होंने राइट चॉइस उनके खिलाफ उन दोनों को यूज़ किया और आउट किया. यहाँ तक they were going okay actually. Yes, right. So this was going on, and Kane Williamson brought in Santner. You know, all of a sudden saw that the fast bowlers are now, you know, the batsmen are getting comfortable against them. I think you know what he was trying to do is he was trying to make them make the pace rather than giving them the pace. क्योंकि ground एक side छोटी थी तो you know he was, that's why they were bowling a lot slower, because उनको मालूम था 200 runs जब आपने करने हैं so वो सिंगलों से तो नहीं होंगे, दुक्कों से तो नहीं होंगे. They have been needing boundaries and they are big hitters. They look for sixes. So अगर तो पेस देंगे तो they will of course hit sixes, but I think very smartly captained, and of course the bowlers have responded beautifully. They bowled excellently. और Santner वही once again हम लोग सुबह भी बात कर रहे थे how important Santner is in, and of course Misbah feels and he thinks that it's left armer का बहुत बड़ा रोल होता है, especially playing in Australia, and I think he's done a wonderful job. जी बिल्कुल. Sorry जी. सिडनी में आप खेल रहे हैं और सिडनी जो है वहाँ पे स्पिनर्स को बहुत हेल्प मिलती है. तो टर्न खास नहीं हुआ बॉल कोई. नहीं, उसकी वेरिएशन बहुत अच्छी है सैंटनर की. ही टॉल और वो आपको ना रिसीव करता है एज अ बैटर अपनी पेस से, फिर एक आर्म बॉल बहुत अच्छा करता है वो. बिल्कुल ऐसे ही. अच्छा, मैं एक चीज़ आप नोट करें, पहले ओवर में इनको दूसरी गेंद पे चौका लगा और चौथी गेंद पे छक्का लगा. दोनों गेंदें खिंची हुई गेंदें की थी. द मोमेंट ही ट्राइड टू पुश इन द बॉल वेंट इन फॉर वो. देन ही जस्ट टुक ऑफ द पेस. हर चीज़ में से ही जस्ट टुक इट ऑफ. ही जस्ट सेड लेट देम क्रिएट द दैट वाज रियली. साइडों पे बाउंड्री वैसे ही बढ़ी है और अगेंस्ट द स्पिन आपने इधर जाना तो आप चांस दे रहे हैं बॉलर को. आप लोगों को सीरियस आंसर चाहिए कि मैंने न्यूजीलैंड क्यों कहा था ऑन अ सीरियस नोट. यस, मैंने जितनी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेली है वो ये पिच हो या वेदर हो वो ये नहीं सोचते हैं. और उनकी टेस्ट क्रिकेट में जो मोस्टली सक्सेस है, इवन जो उन्होंने इंग्लैंड में ली है जाके, वो मॉइस्चर भी होता था तो वो टॉस जीत के पहले बैटिंग करते थे. आज उन्होंने टॉस जीत के दूसरों को पहले. No, that because I think the Duckworth Lewis rain forecast में that's what the captain said. Finch ने उस पे टॉस पे कहा. लेकिन वसीम भाई पहले नहीं ये सोचते थे ये चीज़ें. They always come hard at you. Normally in T20 cricket they have been doing this in Australia. वो पिछली सीरीज़ और स्पेशली सिडनी में हमारे अगेंस्ट भी ऐसे किया था. उस वक्त थोड़ा वेदर था बट दे प्रेफर टू चेज. और मुझे लगता है आज भी उन्होंने, और स्पेशली अगर इसका रिकॉर्ड भी देखें इस ग्राउंड का 50-50 है. यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा एडवांटेज चेज और बैट फर्स्ट का कोई इतना ज़्यादा इसमें कोई फ़र्क नहीं है. तो आई थिंक दैट वाज द रीज़न कि उन्होंने. अर्ली स्टेटमेंट है बट ऑफ कलर दिखे हैं. वो टॉस वाला एलिमेंट था लेकिन ओवरऑल एज अ टीम दे आर ऑफ कलर जो आज दिखे. और इनके लिए टफ हो जाएगा आगे जाना इवन सेमीज में अगर ऐसे ही खेलते रहे. दे लॉस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड दिस अभी जो होम सीरीज हुई थी इंग्लैंड से वो हारे हैं, बुरी तरह हारे हैं वो. बिल्कुल. वसीम, आपने एक बड़ा अच्छा अभी जो बात कर रहे थे कि स्मिथ आई थिंक इज दैट you know that missing glue in the batting. You said that, you know, maybe you need somebody to actually keep them going, rotate the strike and keep. Because I suppose you need somebody. जैसे उनका आज उसने जो इनिंग खेली है न्यूजीलैंड के कप्तान ने केन विलियमसन ने 23 of 23 because उसके इर्द गिर्द स्कोर हुआ है. इसलिए वो 200 तक पहुंचे हैं. So they need somebody like him in the middle. Probably they won't because Mitch Marsh got runs in the World Cup final but that was last year. And we have seen he struggle against especially the left arm spinner. He does struggle. अगर वो spinner चोरी वेरी करता है पे जैसे सेंटनर ने की तो Mitch Marsh struggles a bit. इफेक्टिव होंगे ये लोग. ये तब इफेक्टिव होंगे ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोनिस और टिम डेविड जब इनको मोमेंटम मिलेगा. बट फिर ये जो है हैंडी होंगे टीम के. Interesting you bring Glenn Maxwell here because today we saw him use the reverse sweep a lot.
एक छक्का भी बड़ा मारा उन्होंने ज़बरदस्त, और आउट भी उसी पे हुए हैं बाय द वे, उसी शॉट पे. बट व्हाट फोर्स्ड हिम टू गो दैट राउट? व्हाट डू यू थिंक वाज गोइंग ऑन इन हिज But माइंड? that's his game. He does. Yeah. I mean, he been told to just go and play your game. Look at that one. That was a beautiful shot. आपने सिचुएशन के मुताबिक भी खेलना होता है. अंधाधुंध हर दफा आप नहीं मार सकते. देखिए, और उस ये जरा वसीम ये देखिएगा, look at this shot. Look at this shot. 96 meter there on the reverse. What? ये रिवर्स Yes. स्वीप नहीं है, बेसिकली ही Reverse loss. स्विच हिट है. स्विच हिट किया उसने. ज़्यादातर जितने भी शॉट मारे थे वो मैक्सिमम के लिए जा रहा था. रिवर्स स्वीप आप सिर्फ सर्कल वाला फील्डर उस पर क्लियर कर सकते हैं जब आप हाथों को शिफ्ट कर लेते हैं लाइक अ लेफ्ट हैंडर, एंड देन That's यू a switch बेसिकली चेंज योर लेग आल्सो. वो लेफ्ट हैंडर की तरह आपकी दूसरी टांग आगे जाती है और फिर आप उसको पूरे जोर से घुमाते हैं. दैट्स बेसिकली यू वांट टू क्लियर द बाउंड्री फॉर अ सिक्स. और जिस तो तरह वो mainly ट्राई कर रहा था उस तरफ बाउंड्री छोटी थी, इसीलिए उसने उसको टारगेट किया. पहले भी उसने, अगर हम देखें ग्राउंड के जो वो थे डिमेंशन, उसमें वो एरिया छोटा है ये देखें जहाँ पे उसने नाइस. वो हमेशा उसी तरफ टारगेट कर रहा था जहाँ पे बाउंड्री छोटी थी, क्योंकि दूसरी साइड लेग साइड पे बहुत बड़ी बाउंड्री थी, इसलिए. और वो बैक करते हैं. उनसे ना एक दफ़ा क्वेश्चन हुआ कि आप सिंगल भी बनाते हो ये, या स्विच शॉट खेल के, या आप ये रिवर्स मारते हो या पैडल मारते हो, तो आप कह रहे हैं कि मेरे लिए वो ज़्यादा आसान है वैसे सिंगल बनाना एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द बैटर्स. वो क्या करते हैं, मिड ऑन या मिड ऑफ पे या स्वीपर की तरफ खेल के वो सिंगल करते हैं. इनके लिए ये उल्टी शॉटें, सीधी शॉट से ज़्यादा ईजी हैं सिंगल इवन बनाने के लिए. So maybe he practices. That is the only plus for Australia today कि उसने को 28 रन बनाए हैं, जो I think that is the only plus throughout the day. More than batting, I think इनको अपनी bowling fix करनी पड़ेगी. अगर bowling नहीं fix करनी, Starks got to really be smart early on. बहुत ही ordinary bowling की है. Cummins ने भी ordinary bowling की है. Hazelwood was off color. I mean, अब ये तीन जो main अगर bowler आपके हों तो फिर आप छठे को गिला नहीं दे सकते कि तुमने अच्छी बॉलिंग नहीं की है. आप अच्छा करके देंगे और छठा आपको ख़राब बॉल करके देगा या पांचवा करे तो देन यू कैन से इट. सो आई थिंक दे नीड टू रियली सिट डाउन एंड वर्क आउट देयर बॉलिंग, बिकॉज इनको जब ऊपर से एक ओवर में 2 चौके सामने उसने छक्के मारे, सो यू सॉ दैट कि ही इज कमिंग आफ्टर यू. Where was that short delivery? Where was that aggression which Stark possesses? मैं आपसे ही पूछना चाहता था कि what was Stark trying to do? Was he hunting for that lateral movement? कि मैं थोड़ा आगे फुल फेंकूंगा तो शायद ये sideways कोई movement होगी कुछ. Normally he does that. Normally he's been very effective and he picks up wickets early on, like Shaheen जिस तरीके से करता है, bowled करता है. The left armers normally कोशिश करते हैं कि early on अंदर आते हुए बॉल को मुश्किल डालते हैं बैट्समैनों को. लेकिन अगर आपने देख लिया कि स्विंग नहीं हुआ या पहली बॉल पे दूसरी बॉल पे उसने मुझे मार दिया सीधा, so I have to come out with a different strategy. You cannot really keep bowling there and there. मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि a bowler of his quality, he did not try anything else. He was just being defensive. And Cummins has been quite See that? average in this Even पहला बॉल भी ये जब पहला नहीं हुआ, बॉल था और किए हैं. That's his good bowling. Later on आगे उसने बॉलिंग अच्छी की वसीम भाई. उसने बाद में आगे recovered well after 18 खाने के बाद. उसने बाद में अच्छी 23 की. हो गया था इसको. लेकिन इसलिए early on, न्यू बॉल के ऊपर अब they expect that That he will first do a over was lot not- better. Momentum अगर आप शुरू में इस तरह के बैट्समैन को दे दोगे, इन दोनों की तरह के, चलो उसका चलो एक बुरा दिन हो गया. मिचेल स्टार्क, वी नो वन ऑफ द टॉप बॉलर्स, बट इनको जो प्रेशर में ला रहा है वो पैट कमिंस ला रहा है. Yeah. उसका T20 वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड वैसे ही इतना खास नहीं है. सिर्फ आई थिंक उसकी 2 विकेटें हैं 6 मैचों में वर्ल्ड कप्स में, T20 वर्ल्ड कप्स में. और उसकी जो ओवरऑल करियर एवरेज है T20 में वो ऑलमोस्ट 39 की है. 38.18, दैट्स हिज करियर एवरेज इन T20 फॉर्मेट. So जॉश हेजलवुड ने बहुत जल्दी असेस किया विकेट एलन को बड़ी जल्दी. Yes. बिल्कुल, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो है गुड लेंथ एरिया. लेकिन उसने देखा कि गुड लेंथ के बॉलों को बहुत मार रहे हैं एलन. जैसे ही वो पहला बॉल करने हैं, अगर हम देखें ये वाला जो बॉल था, इससे पहले जो ओवर हुआ स्टोनिस का, उस पर एलन ने सिंगल लिया कि मैं अब वहाँ जाऊँगा और मैं फिर अटैक करूँगा, क्योंकि पावर प्ले में उसका प्लान ये था. लेकिन जॉश हेजलवुड को क्रेडिट जाता है कि उनको पता था ही इज गोना कम आफ्टर मी और यॉर्कर इज गोइंग टू बी अ गुड बॉल अगेंस्ट हिम. पहले ओवर में 15 हुआ था वैसे इसको हेजलवुड को, पहले वेरी फर्स्ट ओवर में. तो एक ही ओवर के बाद उसने रियलाइज किया कि नहीं, अब मैं इसको अपनी जो मेरी स्ट्रेंथ्स हैं उससे हटूंगा और जो उसका वीक एरिया मैं उसको टारगेट 2 करूंगा. की विकेट्स लिए हैं, वरना उस टाइम पे अगर फिन एलन और खेल जाते तो मेरे ख्याल में और ज़्यादा मसला होता ऑस्ट्रेलिया हाँ, का. स्कोर में और ज़्यादा डिफरेंस आ जाना था. होना 200 ही था.
220 भी हो सकता था अगर 200 ही था। अच्छा well that is how it is, but yeah, a lot of concerns there for Australia, and with that it's time for the way forward, brought to you by Bank Al-Falah. All right, way forward, Misbah, let me bring this to you. What is the way forward for Australia in the rest of this ICC Men's T20 World Cup? I think net run rate जिस तरीके से अभी उनका हुआ है, they have to win the games. वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि एंड पे किसी भी टीम के साथ वो नेक टू नेक खड़े हों, इन पॉइंट्स बराबर खड़े हों, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीम इतने बड़े मार्जिन से हारना और इस सिचुएशन में होगी नेट रन रेट पे। तो मेरे ख्याल में सिंपली जैसे माइंडसेट भी ऑस्ट्रेलिया का, वो यही कोशिश करेंगे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एवरी गेम इज़ लाइक अ नॉक आउट फॉर देम, और वो उस मैच को जीतने की कोशिश करेंगे। Yeah, and that was the way forward, brought to you by Bank Al-Falah. इंटरेस्टिंगली आज मिसबा आप बात कर रहे थे कि लाइट्स के अंडर कैप पहन के बहुत सारे फील्डर्स जाते थे, लेकिन आजकल नहीं जाते। एक कैच था वो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड की बैटिंग के वक्त, ऑस्ट्रेलियन फील्डर आई फॉरगेट नेम स्लिपिंग, उन्होंने जब कैच आया है बहुत हाई कैच था बाउंड्री के ऊपर, तो उन्होंने पहले हाथ यूं ऊपर करके लाइट को ब्लॉक किया है और एसेस किया बॉल के अंदर, और उसके बाद फिर हाथ नीचे लेकर आए कलेक्ट करने। सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस जस्ट टुडे। आई थिंक फिर वही बात आ जाती है कि गेम अवेयरनेस है, आपको पता होना चाहिए, और प्रेजेंस ऑफ माइंड। कई दफ़ा जब आप प्रेजेंट नहीं होते तो फिर आपको ये सारी के सडनली आपके पास बॉल आया और आप अचानक झटका लगा आपको, देन यू डोंट नो कि अब मैंने क्या करना है। उसी में आप गलती ये करते हैं कि लाइट की तरफ एकदम जब आप देखते हैं फॉर अ सेकेंड, वो आप बेसिकली गेंद आपकी नज़रों से निकल जाती है। एक तो ये जानता से ड्रॉप हुआ है कैच शुरू में इस लेवल पे अगर कर लेते तो आई थिंक इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट एडवांटेज, गेम। बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता, बट आई थिंक वो ऊपर था। इस He फील्ड just reacted प्लेसमेंट में late. वैसे भी आप ना लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ऐसी चीज हरकत होगी ऐसा Short fine leg पे। बट आई थिंक दैट वाज द डिफरेंस। अगर आप देखें न्यूजीलैंड के जो कैचेस हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने कैच किए हैं, that Oh, was- you know that Glenn Phillips catch will be remembered for a very, very long time. That dive, he flew like a superhero, basically, Superman ki tarah. And You really liked it, I loved it. He came running from very far away, actually. If you Yeah, just, it's not just the catch that he completed, but the sprint that he took off on and attacked the ball at that. I hope we can show that right now because it was just one fantastic catch. Taking off at the right time, judging where the ball is going, lights behind you and everything, not very favorable. Pack house, lot of noise. Yes, superhuman. superhuman effort. It was a superhuman effort. I think we थोड़ा don't. एडवांटेज भी है क्योंकि विकेट कीपर भी हैं वो। अच्छा ये उनका, so he's a wicket keeper as well. Yes. So in the event that New Zealand needs a replacement, he can step in as a wicket keeper. This is the catch. Santner की ball थी. That's a high ball. Cover it to Charles. You've got to be kidding me, Glenn Phillips. Please. एक तो ग्राउंड जो कवर किया है वो वही कह रहा हूँ, he came from so far away. Anticipation के इधर को कैच जा रहा है, ये इधर हिट मारी है, मैं पहले ही इधर भागूं। हाँ. उसने देखा होगा ना कि वो जब बैट्समैन ऐसे गया है, लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा तो वो ऐसे गया तो ऑलरेडी वो मूव हो गया होगा थोड़ा सा। ऑल्सो वसीम भाई बड़ी बाउंड्री थी उस तरफ, और उसने अपने आप को एडजस्ट किया हुआ था ऐसी जगह पे कि जहाँ से वो 2 रन्स भी बचा सकता है। बिल्कुल। और यूजुअली जो बैट्समैन है वो बिग पॉकेट्स में खेल के 2 रन्स भी लेते हैं या 4 रन भी लेते हैं जब It'll be a big जिस तरफ test बड़ी tomorrow for बाउंड्री। both the sides. Big game, you know, clash of the Titans, India, Pakistan at the MCG. ये दुक्के वाली गेम बहुत होनी है कल। तो इसीलिए उसकी जो एंटिसिपेशन थी वो बहुत अच्छी थी। वो ऐसी जगह पे खड़ा था कि मैं चिप को भी कैच कर सकता हूँ और मैं 2 रन्स भी बचा सकता हूँ। एंड देन द टाइमिंग ऑफ द जंप, Oh, that was उसको perfect. कैसे उसने मतलब एग्जैक्ट टाइम पे आप स्लाइटली आगे पीछे हो जाते तो It could have. हाथों Yeah. से आपके बॉल निकल जाता है। Totally. And with that, we're going to take a break on the Pavilion right now. We're going to come back on A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. And we're going to take some of your questions for Ask the Pavilion. But more importantly, we are going to start talking about the Pakistan versus India game tomorrow. Don't go away.
Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं Sports 10 Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup from Australia. कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे जो दूसरा मैच हुआ था इंग्लैंड बामुकाबला अफगानिस्तान और उसके बाद जो पहला मैच हुआ था न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. न्यूजीलैंड winning that one by 89 runs and taking their net run rate right on top of the table at 4.49 and Australia right at the bottom of the table. इस वक्त हमारे पसंदीदा शाहिद हाशमी साहब ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं और आज उन्होंने विजिट किया है. ये कोकोबोरा की बॉल है मेरे हाथ में, कोकोबोरा की फैक्ट्री में ऑस्ट्रेलिया में. आइए चल के देखते हैं. वर्ल्ड कप की गेंदें यहाँ तैयार हो रही हैं. बॉलर स्विंग करेंगे, बैट्समैन उसको हिट करेंगे, लेकिन यहाँ बड़ा प्रोफेशनल इदारा है, फैक्ट्री है. तो आइए हम आपको यहाँ लेके चलते हैं. Hello, I'm Ross Thompson from Kookaburra Sport. I'm actually a family member. I'm third generation. It was my father's generation, our previous generation, that developed the white ball for Kerry Packer back in the 70s. We've been heavily involved in anything to do with day-night cricket, one-day cricket and T20s. Well, at the moment we're just cutting the hides. We actually pick out the best part of the hide for the one-day ball. At the moment we're cutting, as you can see here, discs. Those discs will go into a two-piece ball. But the best part of the hide will definitely go into the one-day ball. So the core of a cricket ball starts off with a mixture of cork and rubber. We get this made up locally. We bring it in here, then we granulate it up. We put it in the moulds and cure it, and it makes a core. A red 4-piece cover that's been closed and then turned around the right way. So obviously the T20 ball will be done in white, but the same process the white ball will go through as well. So in India and Pakistan, this is done by hand. We actually do these two rows by machine. The closing row is actually done by hand. So that's a core that will go into a cricket ball. This core will go into a lower grade ball for club cricket and things like that. The core for the T20 ball is a lot smaller because it starts off as a smaller core, and then we build it up of layers of cork and wool. So the machine is controlled by computers. The scale actually weighs it, puts on the right amount of wool, and has the right amount of tension to bring it down to the right size. This is where we actually put the coatings on the covers themselves. It's a special formula that we use to actually spray the covers, and he's just about to finish, unfortunately. Down in there is a piston, and that piston we can control how hard it hits the ball. So we can set it anything up to 200 kilometres an hour, which is far past any speed that a bowler can bowl a ball. So we can actually take a ball past what it actually goes through in a proper match. So we're actually testing things more rigorously than they would in an actual match. यहाँ पे गेंद की टेस्टिंग होती है कि अगर इस स्पीड से गेंद को हिट किया जाए या बॉल किया जाए तो गेंद कितनी वेयर एंड टियर उसमें हो सकती है. जबरदस्त चीज है. Every ball that we do has the Kookaburra brand on it, and we're very proud of the fact that we can put our name on it. और इसी तरह की गेंदों से वर्ल्ड कप मैच हो रहे हैं और पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी इसी तरह की एक गेंद से इतवार के दिन होना है. All right, there you go. कुछ नहीं, मैं मजाक कर रहा था. शाहिद हाशमी साहब, थैंक यू वेरी मच. कोकोबोरा की फैक्ट्री, कोकोबोरा का बॉल हमारे पास भी यहाँ रखा हुआ है. We've got one here. Let me ask you guys, Wasim, let me start with you. You bowled with Kokoburra, you bowled with Duke. Yeah. You played with that domestically.
रीडर्स ये भी okay. इंग्लैंड की मेक है, अब मेरा ख्याल में बनती है नहीं SG तो इंडिया में SG उन्होंने अपना जब 99 गए थे वर्ल्ड टूर पे तो दे सेट के विल बी यूजिंग आवर लोकली मेड बॉल SG सो वी डोंट, हमें पता नहीं था वो गेंद क्या है तो फिर हमने मंगवाए, उन्होंने दर्जन 2 दर्जन गेंद भेजे, उन्होंने क्वालिटी अच्छी थी पर एक चीज़ हमने नोट की शुरू में कि ये रफ जल्दी हो जाता है, सो वी वर फाइन विद इट बिकॉज वी वर रिवर्स स्विंग जल्दी हो जाती थी उससे। What is your favorite ball to play with? I suppose my favorite ball, England definitely would be Dukes because I prefer readers because maybe he did as well because वो reverse हो जाता था eventually. Duke is rock hard, so normal swing होता और उसकी सीम बड़ी होती है कोकोबोरा से. So I like Duke a lot more than कोकोबोरा. कोकोबोरा मुश्किल है. वाइड रेड बॉल भी पहले अगर अच्छी हरी विकेट भी है 15 से 20 से 25 ओवर वो सीम होगा, हिलेगा और फिर उसके बाद वो सीधा ही रहता है मोस्टली, वो फ्लैट हो जाता है. For you, Waqar? I like, I'm back वसीम भाई, जो वसीम भाई ने बोला कि हम लोग ड्यूक से भी खेले हैं, रीडर्स से भी खेले हैं, कोकोबोरा से भी खेले हैं. कंडीशंस पे डिपेंड करता है, जो कि बताया जाता है कि ये इन सर्टेन कंडीशंस में ये बॉल अच्छा होता है. मेरा पर्सनल बिलीव है कि ये ड्यूक इज़ द बेस्ट क्रिकेट बॉल. कोकोबोरा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बाउंसी पिचेस होती हैं, सो दे वांट द बॉल टू गेट लिटिल सॉफ्टर क्विकली. पाकिस्तान में भी कोकोबोरा लगता है, यू नो, आई डोंट थिंक यू नो दैट्स द राइट वे टू गो. आई फील के ड्यूक क्रिकेट बॉल यूज़ होना चाहिए और हमारे ज़माने में ग्रेज का बॉल भी यूज़ होता रहा है. पुराना ही नहीं था होता वो. हाँ, सो वो भी क्योंकि हमारी कंडीशंस ऐसी हैं, स्लो पिचेस होती हैं, स्लो पिचेस. सो बॉलर्स के लिए यू नो हमारी कंडीशंस में जब ये बॉल रेड बॉल भी इवन 3 डे 4 डे क्रिकेट में कुछ अरसा होता है तो ये बिल्कुल इसकी जो सीम है इट जस्ट गोज़ इनसाइड और फिर जो साइडवेज या लेटरल मूवमेंट जिसको बोलते हैं वो बिल्कुल जीरो हो जाती है. और इवन रिवर्स स्विंग में भी ये बॉल निकलता नहीं है, स्किट नहीं होता उतना जितना ड्यूक क्रिकेट बॉल. 80 ओवर बाद ये वैसे ही सॉफ्ट हो जाता है, इवन लाल बॉल भी ये सॉफ्ट हो जाता है. और इसकी आप ये क्लोजअप दिखाना, मैं इसकी सीम दिखाऊँ इनको. हाँ, जूम इन हो रहा है ये आपके पास. जी हाँ, डिफरेंट सीम. ये इसकी सीम जो है ना ये फ्लैट है, देखें इतनी उभरी नहीं हुई. वो कोकोबोरा की सीम थोड़ी उभरी होती है. अच्छा, ड्यूक की कोकोबोरा की ये फ्लैट है. ये ठीक है, पहले 2-1 ओवर मतलब T20 में हो जाएगा, बट ड्यूक की सीम थोड़ी, जो हमने 99 वर्ल्ड कप में बॉल यूज़ किए थे इंग्लैंड में, वो ड्यूक्स के वाइट बॉल थे. वो रॉक हार्ड ही रहते थे ऑल द टाइम. इनमें जो डिफरेंस है ये मशीन स्टिच्ड है, इसलिए इनकी सीम अंदर है. वो जो सीम जिसकी बाहर है वो हैंड स्टिच्ड है. ओके, सो दैट इज बेसिकली द डिफरेंस. और वो वाकई अभी बड़े लोग डिस्कस करते हैं कि जी हमारे ज़माने में वाइट बॉल स्विंग होता था, अब क्यों नहीं होता वाइट बॉल. इवन इन वनडे नहीं होता वाइट बॉल एज मच. अगर वनडे तो 50 ओवर का होता है. T20 तो अगर अंडरस्टैंड बॉलर सडनली ऑन अ बैक फुट स्विंग करने की कोशिश नहीं करते, बट वनडे में भी ये कम होता है अब. एम आई राइट? दैट्स व्हाट पीपल से. ये आई मीन आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि इस पर बड़ी सारी डिबेट हुई है, बहुत सारे लोगों ने इस पर यू नो बातें की हैं कि ये क्यों नहीं होता. आई डोंट नो दी यू नो एक्चुअल रीज़न, बट येस पहले जब हम लोग खेला करते थे तो इवन ये कोकोबोरा बॉल भी काफ़ी अरसे तक यू नो पहले 10 ओवर स्विंग होता था. में इसलिए ख़त्म हो गया कि 2 नए बॉल लगते हैं. बट लेट मी एक्सप्लेन टू यू गाइस, हम जब भी ऑस्ट्रेलिया गए हैं इवन 80s में 90s में, वहाँ के वनडेज में और न्यूजीलैंड के वनडेज में 2 ही नए गेंद लगते थे. वर्ल्ड में बाद में लॉ आया, फिर एक लॉ आया था कि 34 ओवर बाद चेंज कर दो. एक होता था 40 ओवर 34 वाला भी आया था कि ये बॉल हमारी विकेटों पे इसी दोनों रंग एक जैसे हो जाते हैं जब इसकी ऊपर से शाइन और ये लेकर उतर जाता है. बिल्कुल. सो हेंस द 2 बॉल. अगर नया गेंद स्विंग, आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वसीम भाई, क्योंकि ये बॉल वाइट बॉल जो है वो बड़ी मुश्किल से आपका 25 ओवर निकालता है. 25 ओवर में वो बॉल जो है वो ना उसको इवन 20 ओवर्स में अगर आप देखें एंड पे ऐसा हो जाता है कि थोड़ी सी अगर कंडीशंस और स्केयर ऐसा है कि घास नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है. रिवर्स भी होता है और उसको हिट मारना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो उस गेम को ज़्यादा रन्स बनने के लिए भी थोड़ा सा वो 2 गेंदें इसलिए लेके आए कि 25-25 ओवर बॉल. एक तो वो जो आपने बात की कि पुराना नज़र आने में भी आसानी हो, दूसरा बॉल हार्ड रहे, रन्स बने इस पर. मुझसे आ रहा हूँ मैं, आप पे आ रहा हूँ. मिसबा, भूल जाऊंगा मैं. नहीं, आप रुकिए, याद करके रखें, 1 मिनट के लिए रखें. लेट मी जस्ट आस्क दिस मिसबा की तरफ ये कि मिसबा एज अ बैट्समैन व्हाट डू यू प्रेफर? यू वर कोकोबोरा, ड्यूक, ग्रेज, व्हाट इज योर प्रेफरेंस? देखिए बैट्समैनों के लिए तो पैराडाइज है
बैट्समैनों की, कौन सी? वो तो कोकापुरा से खेलना, रेड बॉल भी है, वाइट बॉल भी है, बिकॉज इन आवर कंडीशंस। ऑस्ट्रेलिया में तो डेफिनेट हमारी कंडीशंस में तो ये आप देख लें सीज़न 2019 से जब से कोकापुरा आया है या जब भी पहले लगा है रेड बॉल, तो आपको देखेंगे पहले 2-3 मैचों में 20-20, 15-15 सेंचुरियाँ बन जाती हैं। ड्यूक का बॉल, बैट्समैन फ्रेंडली बॉल यू मीन? ड्यूक का बॉल इट्स डिफिकल्ट, इवन फ्लैट पिच पे भी वो सीम या स्विंग कुछ ना कुछ होता है। लेट मी गो टू शोएब नाउ। शोएब, सॉरी, यू वांटेड टू ऐड? मैंने सेम क्वेश्चन आपने जो है उसका जवाब मैंने रखा हुआ था। बॉल वो जो सीधा बल्ले में आगे लगे वो अच्छा बॉल होता है। देयर इज अनदर थिंग, हम कमेंटेटर्स को सुनते हैं कि जी वो लिफ्टिंग द सीम, what is that condition? How does it doesn't make any difference in T20 format lifting the seam. I think वो seam इसलिए lift होती थी पहले, अब पता नहीं, अब तो इतनी scrutiny हो गई है कि seam लगे आके seaming pitches के लिए होता है वो। slow pitches के लिए seam जितनी मर्जी lift कर लो, nothing's going to happen. स्पिनर्स करते थे। हाँ, स्पिनर्स अपनी ग्रिप पकड़ने के लिए, वो ग्रिप अच्छी बन जाए, क्योंकि स्पिनर का बॉल टर्न या बाउंस ही उसको तब मिलता है जब उसकी सीम हिट होती है सरफेस पे, और हाथ में भी उसके अच्छा ग्रिप करने भी थोड़ा। So many laws being changed, so many कि बॉलों को बदला है। ये 2 बॉल्स 92 में भी थे, फिर बदला, फिर एक बॉल पे चले गए। 92 वर्ल्ड कप में 2 बॉल्स। ये बहुत दफ़ा एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे हुए हैं। मैं पर्सनली कहूँगा कि आई थिंक जितनी के अब बैट्समैन जितने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं या जितना मार पड़ती है, आई थिंक वी शुड गो बैक टू द एक क्रिकेट बॉल, ताकि रिवर्स शुड कम इनटू प्ले ना। वनडे में रिवर्स शुड कम इनटू प्ले। 30-35 ओवर आपको बॉल नजर नहीं आएगा, वो एक ही कलर ना नजर आए। बैट्समैनों को भी तो थोड़ा स्ट्रगल होना चाहिए ना। फेयर इनफ। बैट्समैनों के लिए आप यू जस्ट मेकिंग इट क्रिकेट वेरी इजी फॉर द बैट्समैन कि जी छक्के लगेंगे तो तभी एंटरटेनमेंट है। अगर अच्छा बॉलर हम लोगों ने किया है। बेस्ट एग्जांपल जो है T20 पिच की, ये प्रेजेंट प्लेयर माने ना माने, वो जो अभी दुबई में पिचेस बनी थी एशिया कप में, यू वर देयर विद मी, दोस वर द बेस्ट पिचेस, नॉट शारजा, दुबई। T20 में नहीं, T20 में तो डिफरेंट। T20 में तो आप 2 तो नहीं लगा सकते ना। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वनडे क्रिकेट के। वनडे क्रिकेट में क्योंकि बिकॉज इट्स वेरी मच बैट्समैन ओरिएंटेड हो गई है गेम सारी ना, कि अब वो लॉज आपने बदल दिए हैं, पावर प्ले इतने का एंड पे, फिर आप एक बंदा अंदर लेकर आओ। इफ यू गॉट ऑल ऑफ दैट, देन व्हाई वो यूजिंग 2 बॉल्स? देन लेट फिर बाउंसर खत्म कर दें। खत्म कर दो। एक ही बॉल रखना है, बाउंसर खत्म कर दें या एक बाउंसर कर दें। मैं कहता हूँ बाउंसर खत्म कर दो, लेट द रिवर्स कम इनटू प्ले, बिकॉज रिवर्स इज आल्सो an art which is dying if you take the playing with the 2 new balls. It's a very beautiful art, I believe. ये लीजिए। अब दोबारा तो नहीं शुरू कर रहे क्रिकेट? मैंने कहा खेलना। It's very interesting, but this white ball is lethal in the hands of Shaheen Shah Afridi. Let's take a look at his stats for the T20 format in the last in 2020. ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, and look at their stats. They will tell you how deadly Shaheen Shah Afridi can be with the white cricket ball. Misbah, you as a batsman would not like to see Shaheen Shah Afridi with that new ball. 53 wickets at the average of 23.01, 6.89 length. Economy is also fantastic. Outstanding, I think. सबसे जो important चीज़ है, first 6 overs are very important in a T20 game. और सबसे जो important player भी वही होते हैं आपके top के। जब किसी टीम के आप 2 प्लेयर आउट कर देते हैं ऊपर से और इस किस्म का इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, ऐसा बॉलर हो कि दुनिया के वो बैट्समैन जो सोच रहे हो कि हम डैमेज करेंगे अगली टीम को, आप उस पर ऐसा अटैक करते हैं, 2 उनके मेन प्लेयर आउट कर देते हैं कि बिल्कुल ही वो बैकफुट पे चली जाती है टीम। तो आई थिंक आप क्लियरली यू कैन सी द डिफरेंस। शाहीन्स फर्स्ट 2 overs he normally wins the game for पाकिस्तान। यानी आप देखें कि 50 to 60% गेम वो पाकिस्तान के हक में स्विंग कर देता है अगर उसका गेंद सही पड़ जाए और वो 2 विकेटें ले जाए टॉप पे। आप मैचअप्स में देखेंगे या उस रिकॉर्ड में देखेंगे कि वो मैच पाकिस्तान मोर देन 60-70% जीता होगा। So I think it's a big stat. As a lefty, you must be very proud of seeing this. I really am. He's unbelievable. One of the best bowlers in world cricket right now in all the formats. And उसकी reason simple है. एक तो वो नया गेंद अटैक के लिए जाता है, T20 में भी और आगे करता है। उसने PSL में भी यही किया है।
वो नए गेंद से बस आगे उसने क्या कि लेफ्ट हैंड हो चाहे राइट हैंड हो, मैंने अपनी टीम के लिए विकेट लेनी है. दैट्स व्हाई ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट इन ऑल द फॉर्मेट्स. Yeah, that's his power play stats that we just saw. But let's take a look at Haris Rauf, another super gun of Pakistan, another weapon for the Pakistani boy. So he's got a lot of wickets, especially in 2020. इधर stat लेकर आए, आपको नजर आ जाएगा अभी आपकी स्क्रीन पे इनकी. This is his stat for Haris Rauf. In the 16th to 20th over, he's the highest wicket taker. Look at that and look at the average. इसीलिए थोड़ी आपको इकोनॉमी लगेगी कि शायद थोड़े ज़्यादा रन देता है बिकॉज he has the best economy in the last 1 year, 2020 से ये 2020 से अभी तक है, last 2 years basically. जी सॉरी. हमें आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जहाँ जिस मौके पे ये बॉलिंग करता है इट्स प्रॉब्ली द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम. जब आपको विकेट की ज़रूरत होती है तब आप रऊफ पे हारिस रऊफ के पास जाते हैं. सो आई मीन वन गॉट टू फॉरगेट कि जिस इकोनॉमी क्या है क्या नहीं है बिकॉज द विकेट टेकर. आई ऑलवेज बिलीव दैट अगर आप यू गॉट टू हैव अ मैच विनर्स लाइक हिम एंड इन ओवर द इयर्स लाइक शाहीन. पिछले 2 सालों में जितना इसने इम्प्रूव किया है, स्पेशली विद ऑल दोज न्यू ऑफ कटर्स इज गॉट, स्लो डिलीवरीज इज गॉट, इज एन अमेजिंग टैलेंट and day by day is getting better and better. He is learning, he understands his bowling really well, beautiful slower one, and especially when you bowling something like 150 and you break down the pace to 115 or 20, you know, it's a very difficult thing to handle. He's very quick arm and is improving day by day. That's why I'm so confident that Pakistan's bowling attack is easily the best bowling attack in this World Cup. It's all about getting runs. तो हारिस को ये फर्क पड़ेगा कि he played for Melbourne in Big Bash League and tomorrow is a huge game against India. और उसको आइडिया है कि उस पिच पे मैंने कैसी बॉलिंग करनी है. Not only MCG, overall उसका जो confidence है ना is sky high at the moment. So and he understands his bowling now. Which is a good really thing. और अगर शाहीन ने उसी तरह का early on आपको start दे दिया, then he will become really lethal, isn't it? Yeah. So we're really hoping that both our key bowlers, in fact all our bowlers, are going to shine tomorrow. That's the hope. With that, we're going to take a break. When we come back, we're going to talk more about the Pakistan-India clash tomorrow at the MCG. Don't go away. Keep watching the Pavilion on A Sports, 10 Sports and the AOY's app. We'll be right back after this break. Welcome back from the break. You're watching the Pavilion. I'm Fakhr, and this is A Sports. You can also watch us on 10 Sports Live and the ARY's app. We're talking about the ICC Men's T20 World Cup. 2 very good games today. The first one, Australia clashing with New Zealand, and the Kiwis reminding the Aussies that they are a team to be worried about. 89-run defeat there for the defending champions at home, and must be a lot of discussion in their camp tonight. And the other game between England and Afghanistan, England winning that one and putting those 2 valuable points on the table. Now we're talking about the mother of all games, the biggest clash in cricketing world, that is India versus Pakistan. Tomorrow, both the teams raring to go, both the teams well prepared, and the fans on both sides super excited. Let's talk about, हम अभी 1-2 दिन पहले बात कर रहे थे शोएब, आपने कहा कि फिनिशर्स के सिंगल्स उनके रन्स के बारे में क्या है, तो हमने एक छोटा सा एक स्टैट हम डिस्कस करना चाह रहे थे कि जो परसेंटेज ऑफ टेकिंग सिंगल्स बाय फिनिशर्स इन T20s, मिनिमम 500 बॉल्स. How important is it for the finisher? Because usually कहते हैं कि finisher he should be able to clear the fence and all that and everything. But how important are the singles for a finisher? फिनिशर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि वो सिर्फ बाउंड्री से रन्स नहीं होते. अगर हम देखें कि अगर किसी ने 25 बॉल में 50 किए हैं या किसी ने 16 बॉल में 50 किए हैं, 18 बॉल में 50 किए हैं, वो बहुत रेयर होता है. वो 30-35 मैचेस के बाद होता है जाके. मोस्टली आपको यही नज़र आएगा इन बिटवीन 30 to 35 बॉल्स जो है वो बैट्समैन जो है वो 50 कर रहा है, जो अच्छी इनिंग्स कंसिडर होती है. तो इसीलिए जितनी इम्पोर्टेंट बाउंड्रीज़ हैं फिनिशर के लिए, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्ट्राइक रोटेशन. क्योंकि जब आप स्ट्राइक रोटेशन करते हैं तो आपको सबसे पहले जो आइडिया होता है ना, वो आपको बॉलर्स का आइडिया होता है, फील्ड प्लेसमेंट का आइडिया होता है और सबसे ज़्यादा पिच का आइडिया होता है. तो इसलिए फिनिशर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
और फिनिशर का सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि जब अगर कोई 16th या 17th ओवर करने आया तो भी जो फिनिशर है उस पर मोरलेस अटैक हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो फिनिशर जाता है 19th ओवर में या 20th ओवर में तो फिर आप देखें कि बॉलिंग अटैक और बॉलर्स जो हैं वो भी अंडर प्रेशर आ जाते हैं, तो तब वो एक्सप्लॉइट करता है उनको और तब वो मैच को फिनिश करता है। तो कई दफ़ा ये नहीं कहते T20 में कि अगर 19वें ओवर तक मैच अगर आपके हाथ में बैटिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर कि 19वें ओवर तक काइंड ऑफ ख़त्म हो जाए, आखिरी ओवर में आपको 12 से 14 ना करना पड़े, बिकॉज ऑफ प्रेशर अगर एक आधा डॉट बॉल हो जाए तो सेट बैट्समैन भी प्रेशर तो पड़ जाता होगा। वसीम भाई उसमें ये है कि अगर आप 150 या 160 का मैच खेल रहे हैं और आप उसको टारगेट को अचीव कर रहे हैं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मिडिल में 2 बड़े ओवर्स लगने चाहिए, मिडिल लाइक ताकि मिडिल यही जैसे 13-14 ओवर जो होते हैं या 15, इससे पहले रन अ बॉल आना चाहिए अगर आप 150 वाला मैच खेल रहे हैं। लेकिन अगर आप 200 वाला 180 प्लस वाला मैच खेल रहे हैं फिर उस सिचुएशन में जाता ही जाता है मैच जहां पे आपको 19th और 20th ओवर्स को आना ही पड़ता है उस मैच के अंदर। ठीक है, राइट, वी गॉट अनदर नाउ वी गॉट अ ग्राफिक फॉर यू जो हम आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं, एंड वी गॉट 2 of our panelists here that are on this list. So this is the percentage of taking singles by finishers in T20s, minimum 500 balls, and if you look at it, it's Misbah-ul-Haq right on top there, and Shoaib Malik at number 4. And you never thought that this guy at number 2, David Miller, would be doing so many singles. उसके साथ झंडा गलत नहीं लगाया हुआ इन्होंने। न्यूजीलैंड का right? लग गया हुआ या ऑस्ट्रेलिया का लग गया हुआ है? He's South African. Yeah, I know that's so. इसीलिए हटा दिया उन्होंने जल्दी से झंडा। आपने भी तो वो उन्होंने इसलिए किया वसीम भाई बिकॉज इट्स योर स्लीपिंग टाइम, तो वो आपको चेक कर रहे थे। Obviously it's not. Still wide awake. He's wide awake. Do So not then the underestimate. message to people is that do your thing properly, otherwise don't do it. But yeah, even One Miller, job. you never thought कि मिलर किस सिंगल लेगा, एंड ही इज अ बिग हिटर। और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है फिनिशर के लिए कि अगर ये इट शोज़ कि अगर बॉल आपके स्लॉट में नहीं है तो आप उस पर पंगा नहीं ले रहे, आप रादर रोटेट कर रहे हैं या उस बॉल को आप गैप में खेल रहे हैं या उस पर आप एटलीस्ट सिंगल ले रहे हैं। Let's take a look at how the Indian batters perform against the Pakistani spinners. This is for the last 10 years. This is both T20s and ODIs. This screen pe aapki aa rahi hai. This is going to be an interesting discussion. Misbah, go through this stat and kind of bring, in layman terms, what does this stat say to us? So this is one day and T20. जी, ODIs and T20s. जी. That's bizarre. ऑब्वियसली रोहित शर्मा 62 की एवरेज अगर आप देखें 248 रन मीन्स ये शो करता है कि ही इज़ प्लेइंग पाकिस्तान स्पिन बॉलर्स वेरी वेल। विराट कोहली as well. 54, विराट कोहली 386 एवरेज। आई थिंक दैट शोज़ के कितने वो स्ट्रॉन्ग है। सूर्य कुमार यादव अभी इतना ज़्यादा खेले नहीं है बट स्टिल 32 रन 32 की एवरेज। गणेश कार्तिक है, मैं ओवरऑल जो नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि अच्छे रन्स किए हुए, अच्छी एवरेज के साथ रन्स किए हुए, लेकिन लेटली ये भी एक स्टैट है कि लेफ़्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट जो टॉप 3 बैट्समैन है या मिडिल ऑर्डर में स्पेशली विराट कोहली, इन सब का स्ट्राइक रेट कम है। ये उस तरीके से रन्स नहीं कर रहे जिस तरह नॉर्मली ये पहले कर रहे हैं। सो Nawaz would be, I the think, key very here. effective. We have look at the paces. Look at how the Indian batters have done against the Pacers, the Pakistani. इसमें भी वनडे हैं। ये 10 साल के हैं, ये भी ODI और T20 का कॉम्बिनेशन है। नहीं, बस सिर्फ T20 का कॉम्बिनेशन बताओ ना हमें। हम कैसे बता सकते हैं कि वनडेज का भी बीच में है, T20s का भी बीच में है। So you can't actually explain this stat. Guys, give it a go, I suppose. Well, Mazhar sent us this, so I'm assuming Mazhar had some thought process in this. Yeah, better be. Yeah. I don't think one should go into that. Too much. We should not read too much into this. Because I agree with T20 you. cricket is totally different to one-day cricket. But तो you अगर आप can see the मिला clear लेंगे difference. तो फिर इसका मतलब अगर दोनों को मिला लेंगे तो इसका मतलब है कि फिर स्पिनर्स को Recent खेलनी past चाहिए। में अगर आप वैसे रीसेंट जो देखा जाए- रिसेंटली मैचेस हुए हैं तो उसको थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए आई गेस इट्स बेटर कि उस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं, और हमारे फास्ट बॉलर्स डेफिनेटली गॉट विकेट्स अर्ली ऑन, स्पेशली अगेंस्ट इंडिया के T20 फॉर्मेट की बात करूं जो मुझे याद है। लास्ट ईयर का वर्ल्ड कप याद है मुझे, फिर अभी का भी एक मैच हम जीते हैं उनसे। सो या वही मेन हमारा वेपन नई गेंद से अब नसीम भी आ गए, वो भी
विकेट नए बॉल से लेता है आके. So you know that's again a plus. Or all the three bowlers we have is 150. They are 150, 140 plus. And in that stat clearly you can see the difference कि overall हमारे pacers ने अच्छा किया हुआ इंडिया के अगेंस्ट. जो overall उनकी एवरेज भी अगर देखें उनके बैट्समैनों की वो लेस है एज कम्पेयर टू द स्पिनर्स. Right. लेफ्ट आर्मर्स बहुत इफेक्टिव हैं अर्ली ऑन अगेंस्ट इंडियन टॉप 3 बैटर्स. लेफ्ट आर्मर्स ने बहुत सारे विकेट्स लिए I think ये game और चैंपियंस ट्रॉफी में भी वसीम भाई अगर आपको याद हो मोहम्मद आमिर ने 3 आउट किए थे. आई थिंक ये गेम देखें टैलेंट वाइज देख लें, फॉर्म वाइज देख लें. वी डिस्कस्ड अदर डे कि इट्स काइंड ऑफ 50-50. ये फील्डिंग पे गेम ख़त्म हो गया आपकी कल. हमने आज देखा कि साइडें बड़ी हैं ग्राउंड्स की, वहाँ पे आपके टॉप फील्डर्स खड़े होने चाहिए. अगर शान खेल रहा है शान, अगर फ़खर खेल रहा है फ़खर, एक साइड पे वो होगा. अब दूसरी साइड पे कौन तेज़ फील्डर है और टीम में आप बता सकते हैं. हु इज़ द क्विकेस्ट वी हैव? डोंट से हैदर अली बिकॉज़ ही इज़ नॉट यंग है. वो यंग है बट ही इज़ नॉट द बेस्ट एज येट. शादाब है. शादाब कांट फील्ड ऑल ओवर. फर्स्ट ओवर में तो बिहाइंड पॉइंट जाएगा. शाहीन इज सेफ. का थ्रो भी बहुत तगड़ा है. Haris Rauf, I think he Haris Rauf is also a good fielder. finest fielder. नवाज बहुत अच्छा फील्डर है. नवाज इज गुड. ये सारे हॉट स्पॉट्स पे खड़े हों. बिल्कुल हॉट स्पॉट्स पे थोड़ा ज़्यादा भागना पड़ेगा बट ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू हेल्प बिग टाइम. is a good catcher. Do you think with Shaheen Shah Afridi coming back from that injury which he got because of diving while fielding, are we going to be protecting him, keeping him around? Sorry वकार, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे. मैं दूसरी तरफ ले गया हूँ कॉन्वर्सेशन को. वसीम finds it very amusing. No, I did not. Of course you did. You're still laughing. What do you mean? I think I heard the same thing. लेकिन वो वकार भाई के मुंह से बहुत अच्छी लगी है. क्या बोला था? क्या भूल गया. Let's don't go there. No, I didn't say anything. You did. We all heard it. Okay. And they were all laughing. I was just I trying don't know to why they're laughing. I just said the facts. So were you serious? I said, yeah, of course I'm serious. Okay, then say it. I'm saying it because तुम लोगों ने बातों में उसको बात को गोल कर दिया. I'm just saying it. Fakhr is a good catcher. Okay. Maybe not that great when it comes to just the ground fielding, but he's a safe hand. He goes in the slip in the early on. I think ground coverage जो है वो he is not that quick in that, but normally PSL में भी आपके he was one of the best fielders catching. बट आई थिंक जो वसीम भाई ने अभी बात की है ग्राउंड कवर करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. और नॉर्मली जो पाकिस्तानी फील्डर्स हैं लाइक शोएब वाज वेरी क्विक. आप अपने आउट ऑफ योर ब्लॉक्स वो जो कहते हैं ना कि आपने निकलना जल्दी है, हम लोग वहाँ पे टाइम थोड़ा सा ले लेते हैं. तो वो जो दुक्के हैं 2 स्कोर 3 स्कोर उसको बचाने के लिए आपने ये बताया नहीं उनको. बताया है लेकिन मसला ये है कि ये तो फिर बैट्स वही बताया है लेकिन निकला नहीं. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने एंटिसिपेट बताया है लेकिन निकला नहीं गया ब्लॉक से. जो आप कह लो जी अब हो गया नींद का टाइम. Go on. Next question, please. Move on. So I'll come back. It's a very serious point here, guys. Yes, I know, very serious. नहीं मैं यही पूछना चाह रहा था. 1.5-2 साल कोचिंग की है तो वो ये चीज़ें बताई तो होंगी तुम लोगों ने यार उनको. हमें बताना नहीं आया. नहीं बताया था आप लोगों ने. Misbah is trying to get out of that one now. हमें बताना ही नहीं आया. मेरा कसूर है. प्रैक्टिस सेशन में तुम्हारे देखे ना, मैं इंग्लैंड में बबल में था आप लोगों के साथ. अब सुबह 37 सवेरे निकलते थे और शाम जब सूरज ढलता था तब अब वापस आते थे. कोशिश तो बड़ी की. You guys actually did. I was used to watch best, लेकिन yeah, because आपके साथ एक्स्ट्रा लड़के भी थे, उनकी भी प्रैक्टिस करानी होती थी आपने. मैच भी हो रहा है इधर. बड़ी फटीक चली है ऐसा नहीं है. 2 months you guys were there. Yeah. But then again, I mean, it's fielding. You know, it's all come to the individual. How you know how badly you want to become extra. He's a good fielder. He can explain us. तो ये नहीं कि आपने टीम ने जो 15 मिनट फील्डिंग की है या 20 मिनट की है या आधा घंटा की है वो कर लो. उसके बाद आपको एक्चुअली एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी ऑन योर ओन. दैट्स वे यू बिकम वन ऑफ द टॉप फील्डर इन योर साइड. फॉरगेट दुनिया तो बात की बात है, पहले अपनी साइड की बेस्ट फील्डर बनने की कोशिश करना. I think that's a very good approach कि अपनी साइड के अंदर competitive हो जाओ. अपना टाइम डिवाइड करें. अगर आप प्रैक्टिस सेशन पे गए हैं तो अगर आपको जितनी भी बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है जो भी करना है उसके अलावा एटलीस्ट गिव योरसेल्फ 10 मिनट्स जिसमें आप कैचेस कर लें, शॉर्ट कैचेस कर लें, बड़े वाले कर लें, ग्राउंड फील्डिंग कर लें. वो आधे ग्लव्स पहन लेते हैं फील्डिंग प्रैक्टिस में. ओके सीनियर प्लेयर पहन लें, आई एम ओके विद इट. टॉप बैट्समैन आपका पहन ले कि उंगली पे बॉल ना लग जाए. बट यंग लड़का जब आएगा, जब वो आधे दस्ताने पहन के फील्डिंग करेगा प्रैक्टिस में, तो मैच में वो फील ही नहीं आएगी आपको. वसीम भाई उसका ना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है. वो इसलिए है कि मोस्टली जब आप
फील्डिंग सेशंस करते हैं प्रैक्टिस में, तो ये जो है ना, ये वाला एरिया जो पाम का एरिया है, ये अंदर से ना वो गोश्त फटे हुए होते हैं, तो फिर मैच में आप वैसा हाथ नहीं डाल सकते, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि ये जो हिस्सा है इसको प्रोटेक्ट किया जाए। You guys have played cricket for 15 years. Babar is one of the top players. These guys can okay, but young कोई बच्चा आ रहा है, तो उसको तो ये चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी ना, उसको तो ये हार्ड यार्ड्स करने पड़ेंगे। और वो फील की बात होती है, तुम लोगों को एक्सपीरियंस है, यू गाइस कैन यू नो कि मैच में डिफरेंट बॉल आता है, प्रैक्टिस में वो ग्लव्स पहनोगे तो वो लगेगा नहीं उंगली पे, जब तक लगेगा नहीं बॉल हाथ आपका सख्त नहीं होंगे तो फीलिंग नहीं आएगी वो। Very true. With that, we're going to take a break right here on the Pavilion. But when we come back, there's more talk on the other side, especially about Hardik Pandya and his averages against Pakistani spinners. Don't go away. Keep watching our A Sports, 10 Sports, and the ARY's app, which you can now download on Android as well. See you on the other side of the break. Welcome back from the break. You're watching The Pavilion. I am Fakhr, and this is A Sports, also on 10 Sports and the ARY's app, which is now also available on Android TV. My apologies, I said Android before. It was already available on Android, but Android TV, as Wasim reminded me. With me in the studios are legends, our national icons, heroes, Shoaib Malik, Misbah-ul-Haq, Waqar Younis, and Wasim Akram. Before we went to the break, I was just talking about Hardik Pandya, and if you look at his stats, and we're just going to bring them up on your screen against Pakistani spinners, these are some spectacular stats. This is him against Pakistani international cricket, both pace and spin. But आप ज़रा वो देखिए कि जो स्ट्राइक रेट है इनका स्पिनर्स के खिलाफ, और ये एक दफ़ा भी आउट नहीं हुए पाकिस्तानी स्पिनर्स के खिलाफ अभी तक जितने मैचेस ये खेले हैं। How do you take on Hardik Pandya tomorrow, Shoaib? You mean the spinners or the team as a team? As a team, how do you take on him? I mean, if he comes against our spinners or our fast bowlers. I think उसको अगर हम उसकी कुछ वीडियोस भी देखें ना, so where he is practicing against spin, तो वो जो क्लोज बॉल्स करते हैं, जो मतलब जिसको आप कहते हैं कि बैट्समैन के नज़दीक आप बॉलिंग कर रहे हैं, वहाँ पे वो बहुत सारे शॉट्स खेलते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारे जो स्पिनर्स हैं उन्होंने उसको शॉर्ट बॉलिंग की है, कि ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं कि जी छक्के मारते हैं अगली बॉलों को, तो हमारे स्पिनर्स उसको ना शॉर्ट बॉलिंग करते हैं। मेरे हिसाब से उसको शॉर्ट बॉलिंग नहीं करनी चाहिए, उस पर अटैकिंग ऑप्शन रखना चाहिए। ये सूर्या है, ये लग रहा है उनको भी नींद आ गई है। उधर भी ये सूर्या कुमार यादव है भाई, उनका अगला स्टैट था, बट आपने चला दिया ये तो कमाल। मुझे ये लगता है कि उसको ना अटैक करें, स्पिनर्स जो हैं उसको अटैक करें बाय बॉलिंग बैक फुट पे नहीं, फ्रंट फुट पे, ताकि उन पे वो चांसेस ले, तो ज़्यादा चांसेस है उनको उनके आउट होने का बनिस्बत आप उनको बैक फुट पे बॉलिंग करें ना। अभी उन्होंने चला, या अब आ गया हार्दिक पांड्या नाउ, सॉरी अबाउट दैट, वी अपोलोजाइज, गॉट द रॉन्ग प्ले देयर, बट लुक एट दैट वकार। Look, he's got a very fast hands, remember that, ठीक है ना? So he hardly moves out of his crease, he stays very still. और even जो मलिक ने बात की है ना कि जो the spinners, he hardly uses his feet and come down to the pitch and then hit it. He waits for the bowlers to come to him, क्योंकि fast hands हैं, that is why he even जो short ball भी है ना उसको भी he just picks it up and hits it big. ठीक है ना? It's a difficult task. It's a very difficult task for the spinners, especially when it's not spinning. It is difficult. So ideally playing against India, get early wickets, get him in early, and then he struggles a little bit. You give him more overs, then there is chance that you'll pick him. एक चीज़ थोड़ी इम्पोर्टेंट होगी कि ये जितने स्टैट हैं, ये नॉर्मली जो पाकिस्तान उनके अगेंस्ट खेला वो इतनी बड़ी बाउंड्रीज और इतने बड़े ग्राउंड्स पे नहीं खेला। अभी मेलबर्न की बाउंड्रीज जिस तरह की हैं, मुझे लगता है कि वहाँ पे यू कैन एक्चुअली बोल द स्पिनर्स, क्योंकि उस तरीके से बाउंड्री आपकी क्लियर नहीं होगी, वो बेसिकली बड़ी हिट्स पे रिलाय करता है। तो आई थिंक थोड़ा सा ये चीज़ भी हमें जहन में रखनी होगी, स्पेशली इन मेलबर्न, कि हमने स्पिनर्स को इन बैट्समैनों के अगेंस्ट कैसे यूज़ करना। मिसबा, मैंने इसको ऑस्ट्रेलिया में खेलते देखा है। इज़ डेवस्टेटिंग व्हेन इट कम्स टू हिटिंग, ही इज़ अ वेरी गुड हिटर। सो जो आइडियली
get him early. When you get him in early, then when he has more balls, then he struggles a little. हाँ, अर्ली आता है तो उस पर अटैक रखो एज Yeah. फास्ट बॉलर्स Try to get him out. बॉलर्स लेके आओ और उस पर अटैक रखो एंड देन सी व्हाट हैपेंस. I can explain a bit. Sure, वहाँ please पे go- भी go for it, go कि for it. Spinners जो हैं उसको Absolutely, go for it. Absolutely. This is नॉर्मली अगर वो आखिरी 4 या 5 ओवर्स में आता है तो मेरा नहीं ख्याल कि लास्ट 4 ओवर्स में आई डोंट थिंक सो कि स्पिनर्स विल बी बॉलिंग एट दैट टाइम. So we've got Shoaib Malik here. Shoaib is going to give us a little bit of a demo here on Hardik Pandya. देखिए हार्दिक पांड्या को जब आप बैक फुट पे स्पिनर बॉल करता है तो उनका फ्लो बहुत अच्छा है और वो स्ट्रॉन्ग है. तो उनके लिए इधर शॉट खेलना भी और सामने भी खेलना और ऑन साइड पे भी खेलना जो है ना वो बहुत इजी हो जाता है. तो मेरा ये पॉइंट है कि जब आप उनको क्लोज बॉल करेंगे तो उनको उनके ये जो पैर हैं ये हिलाने पड़ेंगे. सो यू आर सेइंग कि अगर बॉल ये लेंथ आप बता रहे हैं कि जिस पर पुल मारता है, बिल्कुल, क्योंकि वो ना वसीम भाई Usually हमने spinners देखा है को जैसे यहाँ करते वकार हैं. भाई ने भी कहा है यूजली यहाँ पे करते हैं. जी, जैसे वकार भाई ने भी कहा है कि वो ना अपने पैरों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता. हाँ, वो शफल जब करता है. एक दफा उसकी बेस बन गई है तो देन सो यू आर ट्राइंग टू से कि बॉल हिम समवेयर हियर. जी, यहाँ पे ताकि उसको ये पैर मूव करना पड़े. ये उसकी स्ट्रेंथ नहीं है. तो वो जब तक उसके पैर मूव नहीं होंगे अगेंस्ट स्पिन वो हमें मारता रहेगा. तो इसीलिए अगर यहाँ पे आपने ये बॉल रखा हुआ है, अब इसके लिए वो इस पोजीशन में आके शॉट मारना मुश्किल है उसके लिए. इसके लिए उसको ये पैर यहाँ लाना ही पड़ेगा. अगर और ये यहाँ यहाँ होगा तो वो पुल मार देगा. बिल्कुल, क्योंकि उसके क्विक हैंड्स हैं. तो वो इसको वो मैनेज कर लेता है. और वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में अच्छा बाउंस है. जब अच्छा बाउंस आएगा तो आप थोड़ा कम भी अगर शॉर्ट ऑफ लेंथ होगा तो आप उसको अच्छी बेस में अगर आप खड़े हैं आप एक्स्ट्रा कवर खेल सकते हैं, आप सामने खेल सकते हैं, आप मिड विकेट खेल सकते हैं. तो उसको जो स्पिनर्स हैं वो गेंद आगे करें या एक और चांस ले सकते हैं इसमें. उसी में अगर आप प्लीज़ यहाँ कहीं बॉल रखें, जब वो यहाँ आ गया हुआ है अब इस बॉल को भी पकड़ने के लिए उसको ये पैर को मूव करना पड़ेगा. यू वांट के उसका अगला पांव आगे आए थोड़ा उसका सा. अगला पैर या पिछला कुछ उसकी मूवमेंट होनी चाहिए जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि स्पिनर जो हैं उसको टफ टाइम दे सकते हैं और उसको आउट कर सकते हैं. लेकिन जब उसकी ये बेस बन गई है तो डरो नहीं, एज अ स्पिनर डरो नहीं उसको क्लोज बॉल करने में, थोड़ा वाइड करने में, थोड़ा उसकी टांग की तरफ करने में, बट डोंट बॉल हिम शॉर्ट. वहीं रुकिएगा वसीम प्लीज. वकार, यू हैव अ क्वेश्चन. Will that be okay to ball a little slower to him? कि पेस से ही बॉल किया जाए या क्योंकि बेसिकली वो आपके अंदर एक फियर तो डाल देता है ना कि मैं आई एम कमिंग आफ्टर यू. जब वो इस माइंडसेट में बॉलर चला गया तो देन ही इज नॉट गोना बॉल स्लोली, ही इज गोना बॉल quick at you and then he's very good at it. And let me bowling a little slower and maybe a little bit far from him. Will that work? And let me just add, while you guys are here, just a stat that quickly to add. In Australia, Hardik Pandya has 208 runs at an average of 52 with a strike rate of 162.50. 12 sixes. That's in Australia. Or in general? Against the spin? Again, a T20. Against the spin? No, that overall. देखें विकी भाई, जो आपने क्वेश्चन किया है बहुत अच्छा क्वेश्चन है. लेकिन यूजली क्या होता है जब स्पिनर थोड़ा सा स्लो बॉल करने जाता है तो उसका बॉल शॉर्ट गिरता है. मेक श्योर ये करना है एज अ स्पिनर, अगर आप थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं, वेरिएशन इज गोइंग टू बी वेरी गुड अगेंस्ट हिम, बट वो शॉट नहीं गिरना चाहिए क्योंकि उसकी बेस यहाँ नहीं गिरना चाहिए. उसकी बेस दोनों पैरों पे है और दोनों पैरों पे ही इज वेल बैलेंस्ड. व्हेन ही इज वेल बैलेंस्ड ही कैन प्ले एनीवेयर. तो जब आप स्लो करने जा रहे हैं तो आप ऐसा भी चांस ले सकते हैं स्टंप्स के बीच में करने का ताकि वो थोड़ा लटके उस बॉल पर. उस बॉल पे जब वो थोड़ा लटकेगा तो उसको वो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी जो उसको इस बेस में मिलती है. Very true. तो आप आउटसाइड ऑफ स्टंप भी उसको जा सकते हैं स्लोअर बट फुलर, या उसकी टांग की तरफ भी आ सकते हैं. सम टाइम आप स्लो बॉल आता है, बाउंस है ऑस्ट्रेलियन जो कंडीशंस है तो उसमें शायद वो अक्सर स्वीप शॉट भी ट्राई करता है तो टॉप एज का भी चांस है. और स्लो में ये है कि स्वीपर के पास भी बॉल जा सकता है. All right, great guys. With that, हम लोग लेंगे एक और वक्फा right here on the Pavilion. Don't go away. Keep watching the Pavilion on A Sports, 10 Sports, and the ARY Zap app.
Welcome back from the break, दोस्तों. We have, of course, a very big show tomorrow early morning. कल सुबह 7:30 बजे हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. ऐसे पहले मुका लो. मुक रहे हैं चाहे तकरीबन मुक रहे हैं. We're almost there. I can see the finish line somewhere about 38 minutes away from here. What? I'm just kidding. Don't take that seriously. So let's do a couple of Ask the Pavilion questions because I can see that there are a lot. We're flooded with Ask the Pavilion questions on Twitter. A lot of our fans want to know about the game tomorrow, about India and Pakistan and so forth. Hunain bin Jabbar ka sawal hai, question to Misbah-ul Malik, and he says, how important is the body language in modern cricket? Does it help having a positive body language even if you are not in form? Shan, Heather, Khushdil, Iftikhar, Asif Hasnan must work on it. I don't get good vibes when I see them on TV. It's an observation and a question. Misbah, Shoaib, this is for both of you. Yeah, I think it's the most important thing. अगर बॉडी लैंग्वेज आपकी ठीक नहीं होगी, एक तो उसका इफ़ेक्ट वैसे बड़ा दूसरी टीम देखते ही आइडिया उसको हो जाता है कि किस फ्रेम ऑफ माइंड में है ये टीम. और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक बंदे की अगर बॉडी लैंग्वेज या दो बंदे कोई ऐसी होगी तो वो सारी टीम पे वो इफ़ेक्ट पड़ेगा. अब वो जो एनर्जी लेवल है ओवरऑल टीम का वो ड्रॉप हो जाएगा. तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअली. इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी हर प्लेयर की कि कम अज़ कम वो अपने आप को ऐसे रखे कि उसको देख के बाकी भी इंकरेज हो और एक दूसरे को भी आपने पुश करना है इन द ग्राउंड. अगर आप सो गए, कोई बंदा ये सोच रहा है कि अच्छा ठीक है मैं कहीं आराम से गुजार लूँ टाइम, तो देन वो इट्स लाइक अ वायरस पूरी टीम के अंदर एंड दैट विल डेफिनेटली कॉस्ट. शाहरुख, सॉरी शोएब कुछ ऐड करना है? आई थिंक एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा. बहुत ज़्यादा बात हुई पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर पे, तो ये सिर्फ उनके लिए मैसेज है. देखें, जो प्रेप थी, जितने मैचेस हुए, सीरीज़ जितनी हुई वर्ल्ड कप से पहले, वो ख़त्म हो चुका है. नया चैप्टर है, बड़ा प्लेटफॉर्म है. प्लीज़ जो पास्ट में हुआ उसे भूलें. आप लोग बहुत अच्छे हैं, सब में बहुत ज़्यादा स्किल है. जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट और इंजॉय करें इस चीज़ को. ऑलराइट, आई गॉट अ मैसेज. ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ चूँकि ये हमारी सबकी तबीयत के एन मुताबिक ये सवाल है और वो है शाहरुख खालिद का. शाहरुख खालिद कहते हैं कि ऑन द 27th October the first game is at 8 a.m. Pakistan Standard Time. The second game at 12 p.m. The third game at 4 p.m. Will your panelists be able to work and survive for that long? PS on November 6th, the first match is at 5 a.m. Pakistan Standard Time. क्या नाम बताया था? शाहरुख. शाहरुख खालिद जी. शाहरुख बेटा, आप मुझे तो भूल ही जाओ. समझो I won't be here. Or might we all sleeping here? That doesn't sound right. I don't know. I don't want to sleep here, buddy. Come on, be positive. Body language. Body language is key. We're going to be here and we're going to do it. We'll be here, sure. Okay, right now I've got a question from Sardar Adnan. Sardar Adnan, my question is from the two great W's, Waqar and Wasim. Sir, that you have been involved in so many Indo-Pak clashes. As we know, Indian batting struggles against express fast bowling. So what advice you want to give to our pace battery for tomorrow's game? This was for both of you. Keep it simple, very simple. And, you know, जो भी आप लोग कर रहे हो, I think you guys are doing wonderfully well. अभी जो मैंने recent England series में भी देखा है, fast bowlers, you know, they're doing the best. I feel कि they need to do the basics right, and now Shaheen back in the squad. I feel कि you know, उससे काफ़ी एक मोराल भी हाई होगा, strengthen हुई है टीम. एंड जो वार्म अप में भी देखा है कि उसका जो बॉल गिर रहा है और जो स्विंग हो रहा है, if he swings it that way and if he balls that way, I think we're in a treat again. All right, last question that I'm going to bring out today, Mohammad Imran Man, and this question is for you, Waqar. Waqar, before and after his injury, prior to the 92 World Cup, he took lots of wickets after 92, but what I have seen in highlights, that he was a different beast before 1992. While he remained a beast after 92, but not at the level of before 92. So how much did that injury change you? How bad was the injury and what was the injury? And finally, how much does it affect today's fast bowlers after an injury? देखें, if he thinks that I was a beast before and a beast after, I think we should be happy with that. I mean, injury is part of a fast bowler's life, and injuries होंगी, और especially जब आप young होते हो, young age में ज़्यादा होती हैं. Once you grow a little older,
आपकी bones and muscles become a lot stronger and injuries कम होती हैं. मुझे unfortunately, like some of the other fast bowlers, injury came very early in my career. वसीम भाई को भी groin की injury बहुत early हो गई थी. And then you learn to live with it, and you strengthen your muscles around it and make sure that it don't come back, and it still come back sometime. But yeah, I mean, एक दफ़ा आपको बड़ी इंजरी हो जाए, जैसे मुझे बैक की इंजरी हुई थी, वसीम भाई को जैसे ग्रोइन की इंजरी हुई थी, वसीम भाई का बहुत बड़ा रन अप था, बहुत लंबा रन अप होता था. You had to cut that down. No, I cut it down before the injury, pre-injury. Just. But मेरा जो सूरत हाल थी ये थी कि मेरी बैक was a big stress fractures and I had stress sciatica going in my legs. I went through a lot for good 6-7 months. So Allah Ta'ala ne karam kiya कि बचत हो गई and I came back, and then I've used my experience also later on in my life. But yes, you're right कि जो पहले था उस तरह का कभी भी नहीं होता. Then my arm dropped. There's so many things happened in life, but I worked hard and I made sure that I keep going and be strong, mentally strong. All these sort of things really helps you to just become a great cricketer. All right, with that, we're going to take a break on the Pavilion. Keep watching A Sports, 10 Sports, and the ARY Zap app. We'll see you on the other side of this break. Welcome back from the break. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं The Pavilion on A Sports, 10 Sports, and the ARY Zap app, which you can download for an Android television as well. Good news, panelists. Good news. सब नीचे रख के बैठ गए. आप देख रहे हैं Wasim and Shoaib are down. But I have some good news, by the way. This I thought I'll share it with you now, as this is the perfect time. This was the last break. We are about to go home. Good news. Be happy. Be happy. I think हमारे से ज़्यादा viewers ने किया होगा. Yes. शुक्र है जो आ रहे हैं. वैसे ही वसीम भाई, आज के बाद ना ये जो जैकेट, ये शर्ट और ये ट्राउजर नहीं पहनेंगे, क्योंकि आज के दिन में बहुत ज़्यादा देखी गई. ये बुनियादी तौर पे आप जजीज को मैसेज दे रहे हैं कि थोड़े से पैसे और खर्च करें वार्डरोब के ऊपर. करेक्ट. बुनियादी तौर पे आई होप कि वो मेरे कपड़ों पे तो बहुत कम पैसे लगेंगे, पतला सा हूं ना मैं. Yeah, okay. Anyway, good point. So let's take a look at what we have tomorrow. Tomorrow ये अभी तक शुक्र है. So let's take a look at what we have tomorrow. Hobart पे हम जाएंगे. पहले सुबह का मैच है 9 बजे. Ireland बामुकाबला श्रीलंका. This should be a good game. But it is Hobart, and we've seen how the wickets behave there. And then, of course, the mother of all matches. It is the clash of the titans. It is Pakistan versus India at Melbourne at 1 p.m. Pakistan Standard Time. And this is what we're all looking forward to. हम बात कर रहे हैं चूँकि मेलबर्न की और मेलबर्न के मौसम के हवाले से बड़ी बात होती रही है. वसीम ने हमें बताया था कि एक दिन में 4 मौसम निकल आते हैं मेलबर्न में. बट इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि कल सुबह, यानी इस वक्त रात के वक्त, अभी कहीं वहाँ पर जब टाइम चेंज हो रहा होगा, 5-6 बजे कुछ बारिश जो है वो एक्सपेक्टेड है. उसके बाद रेस्ट ऑफ द डे इट्स गोइंग टू रिमेन ओवरकास्ट, बट द chances of precipitation has gone down to 30%. Now initially एक हफ्ता पहले जब सब लोग इसको देख रहे थे तो 80% chances थे बारिश के. They have come down to छोटी मोटी बारिश से फर्क नहीं पड़ेगा, because MCG की जो ड्रेनेज है is one of the best in the world. Right. उनका कुल 4 सुपर सॉपर भी है ना, एक नहीं है. Okay. So they're good at it. हम MCG वालों को कराची का ठेका दे सकते हैं मानसून का किसी तरीके से. और जितने लोग दुआएं कर रहे होंगे, जितने लोगों ने टिकटें नहीं है और स्पेशली टीवी पे भी मैच देखना, तो मेरे ख्याल में वो बारिश ऑटोमेटिकली शिफ्ट होती जा रही है. 30% भी नहीं रहेगी. 100,000 plus 110,000 people expected tomorrow morning at this game. Let's talk about this game tomorrow morning. Yes, we are going to talk. Oh, Waqar really wants to leave this. Hey, hungry? No, let's do hungry that. or sleepy? I'm tired. He's tired. Yes, we all are. But gentlemen, thank you very much. Wasim, thank you. Misbah, thank you. Shoaib, thank you. Waqar, thank you very much. We will be right back here at 7:30 a.m. Tomorrow morning. To the fans on both sides, India and Pakistan, best of luck to both the teams. Let's just not get overzealous about how we comment on things and say about the things. And to fans of the Pavilion in India, thank you very much. We've been watching your comments on YouTube. We really appreciate the kind words. In fact, for fans all around the world, we've been getting a lot of feedback throughout the world. Thank you very much. We're really, really humbled by all your kind words. And with that, I'm going to sign off. It's going to be a special day tomorrow. Don't forget to tune in. 7:30 a.m. Pakistan Standard Time, when Wasim Akram is at his finest. Good night.